Hello and welcome to the 31st episode of the Meet the Media Veteran series. What does it take for someone to invest more than 50 years in a field? It is more than just hard work. It is passion that makes a person blossom what he does. Our today's guest is someone who has put in all that hard work in a field that he has rewarded him well. He is an eminent photographer who has laid hands on all genres of photography, be it industrial, commercial, fashion, art and travel, regionally and internationally. His work have been published in several catalogs globally, and he is the brand ambassador at Sony India Private Limited. So before I present his detailed bio, may I welcome the eminent photographer, Mr. Hari Mahidar, to the show. Thank you. Namaskar. Very warm welcome to the show, Hariji. Such an honor having you on the show today. Hari Mahidar has been involved in commercial photography since 1964. He has laid his hands on all genres of photography, industrial, commercial, fashion, art and travel, regionally and globally. As a press photographer in Jabalpur, Hari moved to Mumbai in 1967 and worked with renowned industrial photographer Mitra Bedi before working with the ad agencies like MCM and Sistas as head of photography division. He bagged various prestigious international assignments from Tourism Board of Singapore government in 1984. He was commissioned by Oman and Bahrain governments for promotion of travel and tourism through audiovisual photography. Kodak London sent him to promote photography workshops to Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Muscat and Kuwait. He has worked extensively with Mumbai Tourism, Mumbai Museum, formerly the Prince of Wales Museum, on multiple catalogs. His corporate photography portfolio is across a spectrum of industries like nuclear, thermal and hydropower plants, pharma and research centers, automobile, agrochemical, mining, textile mills and machinery manufacturing, agriculture, shipyards and shipbuilding, airports and aircrafts manufacturing, cement and metal plants, dairy products, hotels, palaces, forts, aerial photography for Indian Navy, ports and shipping industries. His work has been displayed at several group exhibitions at prestigious places such as National Center for Performing Arts, Hasinda Art Gallery and Nehru Center, Jahangir Art Gallery, Tangent Art Gallery, City Studio, Kitab Mahal and Point of View, Canon Image Lounge, Hasinda Art Gallery, Islam, Mumbai at Hasinda Art Gallery, Urban Abstract at Hasinda Art Gallery, Group Show at Gallery BMB. He had solo shows at the Indian Circus at Jahangir Art Gallery and Fine Arts Gallery, Kolkata. He has many published catalogs to his credit: Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Air India Art Collection, Churches and Convents of Goa, Bombay Gothic, India and the World, a collaboration between British Museum, London, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai, and National Museum, New Delhi. He has released a coffee table book on River Narmada, the benevolent Narmada. It is such an honor having Mr. Hari Mahidar on the show today. So before further ado, may I request Mr. Mr. Mahidar to kindly start his session. Thank you so much. So good morning. Welcome all who are present on this program today. Our theme today is passion and professional photography. Passion to photograph. So first of all, I am very lucky to be one of them who is having passion and profession together. So this makes it really a matter of luck. Normally it's not the case. होता क्या है कि लोग जो फोटोग्राफी कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कर रहे हैं, लेकिन उनका पैशन होना जरूरी नहीं है, वो ऐसा भी होता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं फोटोग्राफर कैसे बना. थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली मैं फोटोग्राफर कभी बनना नहीं चाहता था. मैं तो एक्चुअली ड्राइंग पेंटिंग का स्टूडेंट था और मैं बहुत अच्छा था, अवार्ड विनिंग भी था उसमें. लेकिन जब हुआ क्या कि 1964 में जब मैं 63 में जब जबलपुर से यहाँ आया बॉम्बे वो कमर्शियल आर्ट करने के लिए, तो मुझे वो एडमिशन नहीं मिला और मैं लेट हो गया था. तो फिर मैंने सोचा एक इवनिंग कोर्स फोटोग्राफी का कर लेते हैं, तो वो करके किया. लेकिन उसमें फोटोग्राफी ये सिखाया नहीं गया, सिर्फ प्रोसेसिंग सिखाई गई थी.
तो इट्स ओके ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, चलेगा आपको? ओके। Yeah, तो वो फिर हुआ क्या कि उसी समय वो कोर्स करके मेरे पिताजी ने मेरी सगाई कर दी और शादी हो गई। शादी में मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बटन देने, डायमंड के बटन देने का सोचा। फिर हमने कहा हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, बटन लेके क्या करेंगे, डायमंड रख के क्या करेंगे, तो अगर आपको देना ही है तो मुझे एक कैमरा दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे उस समय का बहुत बढ़िया फेमस कैमरा रोलीफ्लेक्स, जर्मन कैमरा, ट्विन लेंस रोलीफ्लेक्स, वो भेंट किया मुझे। तो वो लेकर के मैं फिर वापस जबलपुर चला गया, क्योंकि मुझे वो कमर्शियल आर्ट में एडमिशन नहीं मिला था। तो जबलपुर जा करके मैं प्रेस फोटोग्राफर भी बन गया और मैं अपने फोटोग्राफी करने लगता था। हमारा बिजनेस था दुकान का, लेकिन वो छोड़ करके मैं फोटोग्राफी करता था। तो मैं, यानी ये बात हो गई पैशन की, वो इतना पैशनेट हो गया मैं, वो करते करते मैं यानी 2 साल वो किए हुए थे मैंने। फिर मेरा मन हुआ कि इसको मैं प्रोफेशन में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आ गया और इसमें ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, आगे बढ़ना है। तो मैं फिर मैं मुंबई आया 67 में। लेकिन उसके पहले का मैं एक आपको विषय बता देता हूँ कि हमारे ससुराल में वेडिंग थी केरला में, तो वहाँ वहाँ जाने का था। तो वहाँ गया मैं रोलीफ्लेक्स का अपना कैमरा लेकर के 1964। उसमें मैं आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखाना चाहूँगा, वो देख के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 1964 की बात है, जब हम अलेप्पी में थे केरला में, और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई थी, यानी ही एक्सपायर्ड ऑन दिस डे। ये उसी का है। अभी मैं इसमें आगे जाता हूँ। ये इस समय नया नया कैमरा मेरे पास था और मैं इसमें उतनी फोटोग्राफी नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको फोटोग्राफी बताने की कोशिश की है। देखिए, जब ये मैं प्रेस फोटोग्राफर था, तो एक जगह आग लगी हुई थी, तो उसको शूट करने गया उसका। फिर ऐसे कुछ पोर्ट्रेट लिया करता था गांव में जा करके। ये हमारे फेमस मार्बल रॉक्स है। इस तरह से ये मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। इसमें पता नहीं क्यों मुझे उस समय से कुछ इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का इंटरेस्ट आया। तो ये कोरबा का प्लांट है, ये आपको दिखा रहा हूँ। बॉम्बे आकर के, ये बॉम्बे आना एक ये बहुत बड़ी बात हुई। वो कब हुई, उसका ये गैप हुआ 64 में, जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हम लौट के चले गए जबलपुर, और फिर 67 वापस मुंबई आए। तब मुझे पैशन था, उसके लिए मुझे आगे प्रोफेशनल सीखना था, तो मैं उसके लिए मुंबई आया। मुंबई में फेमस इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर मित्तर बेदी को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट, और वहाँ मैं 2 साल तक उनके साथ असिस्टेंट रहा। उस दौरान मुझे बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट देखने मिले। उनके साथ मैं पहला असिस्टेंट था जो प्लेन में जाता था। और फिर उस दौरान इंडस्ट्री क्या होती है वो हमने देखा, और ये भी देखा कि जो मैगजीन में हमने कैमरा के फोटो देखे थे, जैसे कि लिनोप, हसेलब्लाड, लाइका, ये सब जो हमने मैगजीन में देखे थे वो हमने प्रैक्टिकल हैंडल किए। इस हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी प्रोसेसिंग भी करता था उस समय। तो वो करके मैं फिर 2 साल के बाद में एडवर्टाइजिंग एजेंसी दूसरी ज्वाइन की, एमसीएम। वहाँ मैंने 1 साल काम किया। तो बात हो गई 1971। मुझे 1972 में एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक मिला। वो ऑडियो विजुअल करना था ट्रैवल एजेंट्स के लिए, ओबराय होटल्स के लिए। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कश्मीर में, श्रीनगर में। वहाँ पर एयर इंडिया ने उनको, हनीवेल को हायर किया था, ताजमहल ने बेदी साहब को और हायर किया था। ओबराय होटल्स वाले भी बेदी साहब को चाहते थे, लेकिन बेदी साहब ने डेट नहीं दी। तो हमारे प्रोड्यूसर ने ये कहा कि भाई, मैं एक यंग आदमी हूँ, मैंने उनका ही स्टूडेंट है बेदी साहब का, उनको मैं लेता हूँ। अगर आपको कुछ शूट करके आते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं आपका एडवांस वापस कर दूंगा। तो हम लोग इस दौरान दिल्ली गए, दिल्ली, शिमला, ऐसे कुछ शूट करके उनको दिखाया और उन्होंने अप्रूव कर दिया। गो अहेड हो गया। अब ये मेरा पहली बार आउट ऑफ मुंबई, नेपाल, सिंगापुर और ये सारे इंडिया में घूम करके उनका ऑडियो फोटोग्राफी की। वो शो इतना सक्सेसफुल हुआ, इतना अच्छा हुआ
अमेरिकन लोग भी देखने आए पीछे प्रोजेक्टर के पीछे, ये क्या हो रहा, आपने कैसे किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बात लंबी है, लेकिन मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ कि ये ऑडियो विजुअल का दौर था उस समय। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन आया, मुझे पता नहीं कि कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये बता दूं कि स्लाइड्स सिंक्रोनाइज्ड विद साउंड होता है, कंप्यूटराइज्ड बैक प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो शो था 6 प्रोजेक्टर का शो था। तो इस तरह से बाद में मैं और काम करने लगा ऑडियो विजुअल के, और फिर 1973 में फिर मैंने सिस्टर एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग तो हसलब्लड कैमरा की थी, लेकिन उन्होंने, एजेंसी ने पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने ब्रॉनिका लिया, लुक-अलाइक हसलब्लड के जैसा। तो वो उस पर हमने काम किया। बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स थे, एचएमटी मशीन टूल्स, नाइसिल। तो नाइसिल, ये वीआईपी सूटकेस, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, ये सब अच्छे थे। नाइसिल के एक हमको बहुत अच्छी यानी बात याद है, अभी भी याद है कि हमने जो काम किया था, नाइसिल प्रिकली हीट पाउडर। अब ये इसका कैंपेन है, उसमें दिखाना है हमको प्रिकली यानी खमोरियाँ से खुद वो इचिंग होती है, और इन्फ्लेमेशन होता है, आग लगने से ऐसा फीलिंग होती है। तो ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, वो एक फेमस मॉडल हमारी जो हमने ली थी, वो लिरिल की फेमस मॉडल थी। लिरिल को वाली लड़की को लिया, कैनन लूना को, उनका पीछे बैक साइड दिखाना था, और हमने उसके गुलाब के फूल के कांटे लगा दिए और उसके आगे रखे और इस तरह से कर दिया। फिर दूसरा फायर दिखाना था कि जलन हो रही है बहुत, दिखाने के लिए वो टेलर के पास से कुछ चिंधियाँ लेके आके उसको जला करके इस तरह से वो शूट किया। वो बहुत अच्छा हिट हुआ कैंपेन। उसमें जो कांटे वाला शॉट था वो पैक शॉट हुआ। उसमें मॉडल थे, पैक में दिखाया गया था, एक फैमिली है, फादर मदर और चाइल्ड। वो मेरा चाइल्ड जो है, मेरा बड़ा लड़का विनय, जो कि आज खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसका पिक्चर इन्होंने 25 साल तक यूज किया। तो इस तरह से ये एक नाइसिल बहुत अच्छा काम था। खैर बाकी मशीन टूल्स वगैरह उस समय हम लोग फिल्म में शूट कर रहे थे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो जो जर्नी है, जो कैरियर है, वो है बीडी टू एडी। बीडी यानी बिफोर डिजिटल और एडी यानी आफ्टर डिजिटल। तो ये हमारी जर्नी है। तो उस समय जो बात हो गई कि सिस्टम में 5 साल में हमने काम किया, आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब हमें खुद का शुरू करना था। अभी कैमरा तो हमारे पास हसलब्लड लेने का पैसा नहीं था, तो अभी क्या करेंगे। तो कुछ लोन लेके हमने एक घर लिया हुआ था। तो मैं वो घर बेच के हसलब्लड लिया। वो क्यों लिया, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ एजेंसी में काम के लिए, उनको सबको पता था कि मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ और मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लेकिन विच कैमरा डू यू यूज, यही सवाल हर जगह जाता था। डू यू, आई सेड मामिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मामिया ट्विन लेंस कैमरा लिया, उसका सेट लिया। तो बोले नहीं, डू यू डोंट हैव हसलब्लड, सब शोल्डर बता रहे हैं। अब क्या करें, काम मिल ही नहीं रहा है जब तक हसलब्लड नहीं होगा। तो फिर वो घर बेच के मैंने हसलब्लड लिया। अभी कितना बड़ा रिस्क लिया। ये इस पे मुझे वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया, क्योंकि सत्यजीत रे ने भी अपने वाइफ के गोल्ड ज्वेलरी बेच के फिल्म बनाई थी, उनको कोई लोन नहीं दे रहा था क्योंकि। तो ये बात हुई। अब इक्विपमेंट की, तो प्रोफेशनल असाइनमेंट करना है, प्रोफेशनल काम करना है, तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी बहुत जरूरी है, होता है। तो अब हम लेने के इस तरह से फिर हसलब्लड लिया, सेकेंड हैंड लिया, और आगे काम चला। हसलब्लड कैमरा अगर आपको बता दें कि वो स्क्वायर फॉर्मेट है। तो होता क्या था कि हमारे जो इंडस्ट्रियल असाइनमेंट में सारे पिक्चर जो हम शूट करते थे वो स्क्वायर होते थे। अभी मुझे पोर्ट्रेट लेना है, अभी जैसा आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है हमारा, तो उसमें मेरा नीचे का नहीं दिख रहा है, ऊपर भी नहीं दिख रहा है। तो लेकिन हसलब्लड कैमरे में क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट है, नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। तो उनकी ये लाइन थी हसलब्लड की, यू कैन ऑलवेज क्रॉप। मैंने कहा व्हाई शुड बी ऑलवेज क्रॉप। तो इस तरह से वो उसमें 10 साल मैंने यूज किया कैमरा, क्योंकि इमेजेस हम शूट करने के बाद एजेंसी को दे देते थे। वो लोग क्या करते हैं ब्रोशर बनाने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं। तो इस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन आ गया। फिर मैंने हसलब्लड भी बेच दिया और वापस रेक्टेंगल फॉर्मेट में। इस तरह से इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है, और आजकल अभी सब अपने यंगस्टर के साथ भी होगा कि वो
कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, अभी आजकल वेडिंग फोटोग्राफर्स जाते हैं तो उनसे भी पूछने लगे हैं लोग कि भाई आपके पास कौन सा कैमरा है, आपके पास वाइड लेंस है क्या। इस तरह से ये हम इसको रैगिंग कहते हैं। ये अब बंद कभी होने वाला नहीं है, होता रहेगा। तो अभी हम चलते हैं, कुछ फोटो देख लेते हैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया का है, आर्मी सेलिब्रेशन डे। ये हमने पैनोरामा बनाया था। अभी ये किसी का असाइनमेंट नहीं था, तो ये बात हुई जैसे पैशन की, तो हम बिकॉज पैशनेट हैं तो हम अपना भी काम करते रहते हैं बिसाइड्स अवर प्रोफेशनल काम। तो वो ये देखिए, ये एक आप एरियल व्यू देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से नहीं लिया गया है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर से लिया गया है। उस बिल्डिंग को यानी उसका 37th फ्लोर पर हम हैं, जहां से हम ये एक बिल्डिंग की फोटोग्राफी कर रहे थे टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील का जो इंग्लैंड का कंपनी है वो है कोरस स्टील, उसका असाइनमेंट था। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरा स्ट्रक्चर स्टील का है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये बिल्डिंग 40 फ्लोर्स की है। इसकी ब्यूटी क्या है कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक आने के बाद भी 400 mm तक झूल सकती है, गिरेगी नहीं। अब हमें यहाँ से एक्सटीरियर सब ले लिए, अब ये ऊपर से जाके बताना था कि ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है। तो अब हम यहाँ से एक पॉइंट लेना चाहते हैं, जो क्रेन दिखाई पड़ रही है, ये जो क्रेन दिखाई पड़ रही, यहाँ से मुझे शॉट लेना था। ये देखिए, अभी इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे हेलीकॉप्टर से शॉट लिया गया है, लेकिन ये जो बकेट है जो नीचे से सीमेंट लेकर के ऊपर आती है, उसमें मैं यहाँ पर चढ़ा। ये हमारा जो क्लाइंट था इंग्लिशमैन, वो भी साथ में आया हुआ था। मैंने उससे आइडिया दिया कि वी विल टेक अ फोटोग्राफ लाइक दिस फ्रॉम हियर, तो कहने लगा नहीं डोंट टेक द रिस्क। उन्होंने मना किया मुझे, लेकिन मैं डोंट वरी, आई हैव डन लॉट्स ऑफ स्टंट लाइक दिस बिफोर, नो प्रॉब्लम। फिर उनको मैंने नीचे छुपने को कहा, और फिर ये बकेट में आके एक वॉकी टॉकी लिया, अब एक आदमी उनका हेल्पर लिया, और उसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे थे क्रेन ड्राइवर के साथ कि आप मुझे यहाँ से पीछे जाइए, लेफ्ट में जाइए, आगे, ऐसे करते करते। तो ये जो शॉट लिया, इसके बाद मेरे दिमाग में एक शॉट और था, वो उसके जैसा मैंने हॉलीवुड के फिल्मों में देखा हुआ। हाँ, ये देखिए, ये वाला है, जैसे हेलीकॉप्टर आता है, ये पर्सपेक्टिव मुझे देना था। तो उसके लिए मैंने इससे क्रेन ड्राइवर से कहा कि मुझे आप थोड़ा सा ऐसे जाइए, ऐसे करते करते जहां मैं फ्रेम में मुझे ये पूरा पर्सपेक्टिव मिला, पार्किंग लॉट मिला, वो करते हुए, और पीछे पूरा एलिफेंटा केव्स तक पूरा बॉम्बे दिखाई पड़ रहा है। ये शॉट लिया मैंने उसको। तो ये इस तरह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लाइंट को, मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल अप्रोच जो है हमारी, उसमें हमें क्लाइंट को जो वो चाहता है उससे कुछ ज़्यादा ही देना है। तो ये मैंने अपने आप करना चाहा। मुझे कि वो तो मना ही कर रहा था कि आप वो मत जाइए, लेकिन ये किया, वो बहुत खुश हुए। ये जो शॉट है, ये वहाँ मुझे देखा कि यहाँ से ये पूरा दिख रहा है अपना ब्रिज, और ब्रिज दिख रहा है। अब यहाँ से इवनिंग का शॉट अगर लिया जाए तो हम रुके रहे, फिर हमने इवनिंग में ये शॉट किया, यानी सिलुएट बना करके। ये दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्टेड। ये मुंबई का एक वो पेज बताने के लिए ये हमने किया। ये देखिए, इसका ये है लेजर शो। ये है सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड SCLR फ्लाईओवर ब्रिज। अभी यहाँ पर भी देखिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे एरियल व्यू मिले, लेकिन अब कुछ है ही नहीं, हेलीकॉप्टर ले नहीं सकते और ड्रोन यूज नहीं कर सकते। तो हमने फिर एक बिल्डिंग में जाकर के इस तरह से पैनोरमा बनाया। अब आगे नहीं, ये देखिए, ये इवनिंग हुआ। यहाँ पर ये शॉट मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कि जनरली आपने देखे होंगे ऐसे शॉट कि जिसमें आपको ये स्ट्रीक दिखाई पड़ती है, यानी लॉन्गर एक्सपोजर होता है। लेकिन हमने ये जानना चाहा कि हमको ये कार भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये कौन सी कार है। तो मुझे शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने ISO बढ़ा करके, और ये सोनी का वो कैमरा है जो यानी जिसमें हायर ISO में भी नॉइज नहीं आता है, उस सोनी S उसको यूज किया था। अब ये एक है शॉट, हम लार्सन टूब्रो का
हजीरा प्लांट शूट कर रहे थे। उसमें मुझे ये बॉयलर बहुत अच्छा दिखा ग्राफिक, यानी अभी यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपना आई फाइंड आर्ट इन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो ये एक बताने के लिए इसका क्लोजअप ले लिया, अभी बहुत अच्छा शॉट, उनको भी बहुत पसंद आया था। फिर दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था कि सारे एयरपोर्ट, यानी जो 4 नए एयरपोर्ट जो बने हैं उनको शूट करना था। तो ये मटेरियल सप्लाई करते वही कोरस स्टील वाले, इन्हीं की ये बिल्डिंग है, ये भी वही मटेरियल यूज किया गया है। देखिए ये सूरत एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी वही हुआ कि मुझे पूरा एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ ही दिखाना है। तो फिर ये कंट्रोल टावर की परमिशन ली गई और ऊपर हम जा करके, ये उस समय लकीली हमारे लिए ये पैसेंजर ट्रेन जो प्लेन जो जा रहा था उस अरेबिया, सऊदी अरेबिया, जो हज के लिए जो पैसेंजर जाते हैं उनकी लोडिंग हो रही थी वो लोग, तो ये वहाँ पर बहुत अच्छा मिल गया। तो यानी, और दूसरा एक ये शॉट ये देखिए, ये है नागपुर एयरपोर्ट। अभी इसमें मुझे रूफ, ये जब उनका प्रोडक्ट हमारा क्लाइंट का ये है जो दिखाया जा रहा है शीट, ये वहीं पर इनसाइड एट साइट इसको बनाया जाता है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर हमको शॉट में प्लेन कब आएगा, उसको आते हुए लेंगे, तो पीछे पार्क है, तो इस तरह से हमें आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जा करके कहाँ से हो सकता है हमारा शॉट, वो हम सर्च करते हैं लोकेशन। तो ये एक्चुअली क्लाइंट ने ऐसा ये नहीं कहा था कि आप ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन यहाँ फिर वही हमारी वो जो आदत है कि हम क्लाइंट को जो चाहिए उससे ज़्यादा देना चाहते हैं, तो हम अपना सर्च करते हैं। ये देखिए ये है, ऐसे ऐसे उनको एंगल लेके देना है जो उन्होंने नहीं सोचे थे। ये हो गया। अब हम दूसरे इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। ये देखिए ये है कॉपर प्लांट तूतीकोरन में। अब यहाँ पर ये सिर्फ सिलुएट ले लेते अगर उसमें सन नहीं होता, लेकिन हमने कहा सन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम वेट किए सन को, और सन को कहाँ फ्रेम करना। सन ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी कि ये यहाँ पर भी सन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो वहाँ चाहिए हमें। तो यहाँ पर लेफ्ट में हम उनके जो एनुअल रिपोर्ट है या ब्रोशर है उसमें आर्ट डायरेक्टर के लिए कुछ विजुअल स्पेस छोड़ देते हैं कि वहाँ पर कुछ लिखा जा सकता है या छोटे छोटे इंसर्ट बनाए जा सकते हैं। यानी हमारा जो एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस था सिस्टार में 5 साल, उसके हिसाब से हम अभी हम विजुअलाइजर भी होके सोच रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो ये हमने ऐसे फ्रेमिंग, तो ये सब ये हो गया। फिर दूसरा ये है, देखिए ये टावर है, इसमें वही बात हो गई जैसे आईफल टावर है। अभी इसका ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये मेटल का बना हुआ है इस तरह से। अभी हम अगर आदमी खड़ा नहीं करते, आदमी हमने खड़ा किया है, किसी को रिक्वेस्ट करके यहाँ प्लांट किया गया कि जस्ट टू ह्यूमन स्केल बताने के लिए, तो ये भी हमें करना पड़ता है। फिर ये जो बात की थी कि यहाँ शूट करते करते इस एंगल से हमें सामने बहुत कचरा दिखाई दिया, बहुत कचरा था, लेकिन उसको कचरे को कैसे छुपाया जाए, तो वो हमने क्या कि एक मिरर का छोटा टुकड़ा जो हम अक्सर कैरी करते हैं हमारे असाइनमेंट में कैमरा बैग में, वो सामने रख करके वाइड एंगल में उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई वाटर टैंक था, उसके अंदर रिफ्लेक्शन है। तो ये भी हम चीटिंग करके भी, यानी एज ए फिल्टर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं और इमेज को बदल सकते हैं। ये देखिए ये एक है, ये गैमन वालों ने ब्रिजेस बनाए हैं ये ट्रेन के लिए, अपनी मेट्रो रेल दिल्ली का शॉट है। इसको भी हमको ये बताने के लिए कि ये ब्रिज ऐसा है, लोकेशन सर्च करते करते ऊपर से एक शॉट मिलेगा करके वहाँ हुआ। फिर अभी वेट कर रहे हैं हम कि भाई ट्रेन आएगी, इस तरह से ये शॉट। अभी जो टाइम है यहाँ पर हम उसको अगेंस्ट लाइट भी शूट करना है तो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसके लिए दोबारा नहीं आ सकते, परमिशन मिली है। तो इस तरह से ये शॉट हुआ। फार्मास्यूटिकल ये सबसे मुश्किल काम है। स्टेनलेस स्टील है, पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि आपका इक्विपमेंट भी सारा दिखता है, और वो मूड वही आना चाहिए जो हाइजीनिक स्टराइल इफेक्ट आना चाहिए। तो और हमें भी ऐसे ही कपड़े पहन के अंदर जाना पड़ता है, सारा इक्विपमेंट को भी हमको स्टरलाइज करना पड़ता है, और फिर वो कितना इक्विपमेंट लगेगा क्या होगा, फिर इस तरह से करते करते ये आपको मंगाना है
तो स्टरलाइज करके आता है। इस तरह से ये शॉट हो गया। ये देखिए, अभी हमें ये भी पता लग गया एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई पहले हम पूछ रहे कौन सी इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, तो वहाँ इंडस्ट्री में कैसे कैसे ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, शाइनिंग होंगे। तो अब स्टेनलेस स्टील का जो इफेक्ट है वो लाने के लिए तो हम उस हिसाब से कुछ इक्विपमेंट भी भले बढ़ जाता है, एक्सेस बैगेज बढ़ जाती है, वो ले जाते हैं और ऐसा करते हैं। तो ये इसको चमक लाने के लिए बड़ा बड़ा पेपर लेके गए और उसको पीछे, यानी आगे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है काम वो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये इतने हमने इंडिया में शूट किए हैं इंडस्ट्रीज को, उनके R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, तो फिर हमें लगा कि हमारा भी कुछ R&D होना चाहिए। तो इस तरह से हमने फिर अपने भी शुरू करना शुरू किया अंदर, जो आगे हमने बहुत से मॉडिफाई किए इक्विपमेंट को भी। जैसे कि बहुत सिंपल एक एग्जांपल देते हैं कि जब ऐसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बोर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, तो हमने अपने स्पेशल बोर्ड्स बनवाए। यानी ये देखिए, एक हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड है, उनसे बनवाए, उससे करके तो बड़े बड़े वायर, बड़े बड़े स्विच बोर्ड्स, एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड्स, ऐसे सब ले जा करके ये पैनोरमा बनाएंगे। ये फार्मास्यूटिकल है। ये एक थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ, क्योंकि काम तो बहुत किए हुए हैं, कि हम उसको कैसे ड्रामा ऐड कर सकते हैं एज ए प्रोफेशन। तो ये जैसे हमने अगर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में किया कि बिल्डिंग को बड़ी बताने के लिए वाइड एंगल यूज करके, और जो ड्रामा किया है अपना एंगल जो है व्यू पॉइंट को बदल के नीचे से लेके ऊपर से ले तक ऐसे वेरिएशन करके, तो ये हम ऐसा करते हैं। फिर इस तरह से ये स्टोरेज यार्ड है इनका, वहाँ पर हमने ये किया। यानी अब ये उनकी R&D लैब है जहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं। अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्रियल में शूट करने में कि जगह कम होती है, और वो क्लाइंट ये कहता है कि भाई हमें यहाँ से वहाँ तक सब दिखना चाहिए। तो अब यहाँ से वहाँ दिखने के लिए फिर हमें अपना सोल्यूशन निकालना है, और फिर जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो जुगाड़ करके वो हम कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा एक है, ये एक रिलायंस का प्लांट है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये केमिकल से पोल्यूशन बहुत होता है। ऐसे पोल्यूशन वाला हमारा और एक बड़ा असाइनमेंट था इंडस्ट्रियल, वो चेंबूर में फर्टिलाइजर का, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। तो ये हमने एक देखा कि यह पौधे यहाँ लगे हुए थे, अच्छे फूल भी थे। तो दिस इज टू प्रूव दैट वी हैव नो पोल्यूशन, वी हैव ब्यूटीफुल ग्रीनरी, वी हैव ब्यूटीफुल गार्डन, ऑल्दो आवर प्लांट कैन पोल्यूट। ये दिखाने के लिए पॉइंट को मैंने इस तरह से ये फ्रेम किया। तो ये एक अपना खुद का विजुअलाइजेशन है। अभी हम क्या करते हैं कि ऐसा रन करते हैं। हाँ, ये हो गया, ये देखिए, इसको हम रन कर देते हैं। हाँ, ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वर्ल्ड का सेकेंड ट्री है, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ट्री, वेयर यू कैनॉट फाइंड वेयर इज द ओरिजिनल ट्रंक। ओरिजिनल झाड़ किधर है यही नहीं समझ में आता। यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं रिसर्च करने के लिए। कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में है ये बहुत बड़ा ट्री। अभी ये प्रॉब्लम हमने अपने आप के, किसी ने कहा नहीं था ये करने के लिए कि मैं कैसे बताऊं कि ये पूरा यहाँ से वहाँ तक ये समझ में ही नहीं आता कि कौन सा झाड़ है और कौन सी जड़ है और कौन सा एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैंने एक पैनोरमा किया और उससे मुझे ये समझ में आया, और आई थिंक लोगों को भी समझ में आया। ये बहुत पसंद किया गया पिक्चर। ये पैनोरमा है। ये वही कलकत्ते का एक है, रविंद्र सेतु। हाँ, ये वाला पिक्चर, इसको एक अवार्ड भी मिला था। ये हमारा फ्री वे फ्लाईओवर है, मुंबई का है, बहुत जबरदस्त है। इसको हमें यहाँ से देखना था, तो फिर यहाँ से सर्च करते हुए गाड़ी में, हम क्लाइंट की गाड़ी में, हमने कहा चलो लेट्स गो एंड सी, रेकी करते हैं कि कहाँ से मिल सकता है। तो फिर ये लोग यहाँ एक 14 फ्लोर पे जाके एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग और लंबी थी, ऊंची थी, लेकिन परमिशन मिल गई, 14 फ्लोर वाले ने दे दी बड़े अच्छे से। तो वहाँ से मैंने ये पैनोरमा बनाया। और ये ड्रामेटिक क्लाउड, ये भी बहुत अच्छा पसंद किया गया, इसको अवार्ड भी मिला था। ये बस्तर का चित्रकूट फॉल है, इसको भी पैनोरमा बना करके हमने नीचे आकर के ये किया। असाइनमेंट था रिलायंस के लिए, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट के लिए। बड़ा करते हैं तो थोड़ा टूट रहा, पिक्सेलेट हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर की परमिशन मिली थी,
तो हेलीकॉप्टर में राजामुंद्री एयरपोर्ट से हम लोग चले, 60 किलोमीटर डीप सी में है ये एक्सकवेशन, यहाँ पर हो रहा है ड्रिलिंग ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन पहले नहीं दी गई थी, फिर कैसे 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 मना करके उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ लैंड कर सकते हैं हेलीपैड पर सिर्फ 10 मिनट के लिए। इसका एक वो साइंटिफिक रीजन ये है कि इस प्लेटफॉर्म से जितना वजन निकाला जाएगा उतना वजन, बस एक लिमिट है, उससे ज्यादा वजन इस पर नहीं रखा जा सकता। यू कांट ऐड ऑन एनी वेट अबाउट दिस बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला। तो वो आपको क्या करना है, अगर हम इतने हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो इतना वजन निकालना पड़ेगा। इस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट करके सिर्फ हमें 10 मिनट की परमिशन दी और ये लिया। तो इस दौरान 60 किलोमीटर करने के लिए जो हेलीकॉप्टर हमारा जा रहा था, तो उस समय हम क्या करते, अक्सर लोग जो है देखें, ये हेलीकॉप्टर बंद था, 8 सीटर था, उसमें अगर हम विंडो खोलते हैं तो पूरा हम पूरा सक कर लेगी हमको प्रेशर, एयर प्रेशर, और हम बाहर चले जाएंगे, तो अलाउ नहीं था। तो विंडो से ही हमने शूट किया। वो फोल्डर में आपको अगर आगे दिखाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट असाइनमेंट पर। ये दिल्ली का जो हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये ध्यानचंद जो प्लेयर थे जिनकी मेमोरी में ये बना है, वो वहाँ की स्टैच्यू नीचे है, वहाँ से लेकर ये इंडिया गेट और ये लाइन एक ही लाइन में है। अब ये मैं कैसे बताऊं, उसके लिए फिर मैंने छत पे जाके पूरा देखा, सर्वे किया कि भाई वहाँ से, तो यहाँ पर रख करके जब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से पूरा एक लाइन मिल रही है मेरे ग्राफ में, ग्रिड में, यहाँ लॉक किया और ये शॉट लिया। तो ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं जो भी करता हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें करके, ये देखिए ये वाला जो है, ये भी पूरा स्टेडियम दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अक्सर लोग जो है ऐसे करने के लिए फिशाई लेंस यूज कर लेते हैं, जो है एक्सट्रीम वाइड 180 डिग्रीज का व्यू दिखाने के लिए। लेकिन वो यूज करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन बहुत हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, पूरी लाइनें सीधी चाहिए, यहाँ से लेकर वहां तक देखिए पूरी लाइनें सीधी चाहिए। ये करने के लिए फिर एक ही रास्ता है कि आप उसको अपना पैनोरामा बनाइए और फिर उसको आपको लाइनें सीधी मिलेंगी। जितना मर्जी चाहिए आपको 360 डिग्री कर लीजिए, ये सोल्यूशन होता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील, अगर आपने गए होंगे कोई स्टील प्लांट में, तो इसकी इतनी दूर तक भी इतनी हीट होती है, इतनी हीट जनरेट होती है कि आपका कैमरा का ट्राइपॉड भी गर्म हो जाता है, आपके जूते भी गर्म हो जाते हैं। तो आपको दूर से लेना पड़ता है। फिर दूर से लेना है तो फिर कुछ अगर लाइट ऐड करनी है, जैसे कि इधर से की गई है, तो वो भी मेल्ट ना हो जाए, उसकी ना इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ असर ना हो, ये सब देखना पड़ता है। प्लांट में अंदर जब घूम रहे हैं तो आपको स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि और कौन कौन से पिक्चर्स, यानी वहाँ पर आपको फुल फ्रीडम है, आप क्या करना चाहते हैं, कितने भी एंगल। किसी ने कुछ नहीं कहा है, इनको एनुअल रिपोर्ट के लिए फोटोग्राफ चाहिए, पूरे सारे डिविजन्स को कवर करना है। तो ये करते समय तो अचानक एकदम ये दिखता है, ये जो स्टीम है, स्टीम की वजह से जो सूरज है वो ऐसा ब्रेक हो रहा है, इससे बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है ना। तो वो इमेज पूरी नहीं, तो वो हमको इंटरेस्टिंग लगा। यानी पूरा राउंड सर्कल जो होगा तो वो तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, लेकिन वो उसको भी एक किया गया है कि वो उस समय स्टीम की वजह से, और ये भी बताना है कि स्टीम रिलीज देयर। ये एक मूड है इसका। एक ये पैनोरामा है, अगेन वापस शाम को करना, यानी यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं। फिर और पिक्चर्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स सिलेक्ट करते हैं, खोजते हैं। ये देखिए ये भी एक एक्सपेंशन प्लान है उनका, यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है नई। तो वहाँ पर मुझे ये भी बताना है कि ये चिमनी भी है, ये भी है, वर्कर भी है। तो फिर मैंने ये वाइड एंगल से सिलेक्ट किया, ये लो एंगल, जिसमें मुझे लोकेशन भी समझ में आ जाए ये कहाँ काम हो रहा है। इसका पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है, लेकिन पोर्ट्रेट को लेने का मैंने तरीका बदल दिया है। पोर्ट्रेट सीधे सीधा भी अक्सर लेके 85 के लेंस से या टेडी लेंस से लेते हैं, तो उसको फिर मैंने वाइड एंगल से पोर्ट्रेट किया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था। अभी हमारे अक्सर जो बड़े बड़े हमने जो काम किए हैं इतने सालों में, वो सब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डैम्स हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं। उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, और ये मैं शुरू से ही मेरा इंडस्ट्रियल माइंड रहा है कि भाई हाउ थिंग्स आर डन,
हाउ थिंग्स आर डन, हाउ थिंग्स आर मेड, ये जानने के लिए। और चूंकि हम रिसर्च सेंटर भी उनके जाते हैं, उनके सब करते हैं, तो एक शौक डेवलप हो जाता है। और मुझे ग्लैमर से ज़्यादा ये इसमें ग्लैमर नज़र आता है। तो मैं ये कुल्लू मनाली के वहाँ पर कुल्लू वैली में ये टनल बन रही है। तो इसका ये पहाड़ के यहाँ से एंड में है। यहाँ से क्या होगा, पानी लिया जाएगा, पाइप के थ्रू नीचे जाएगा, फिर वहाँ से ये हाइड्रो पावर स्टेशन बन रहा है। तो उसके लिए पानी को नीचे गिराया जाएगा। पहले नीचे वहां से लेकर के, नदी से लेकर के लाया जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिराया जाएगा टू जनरेट द फोर्स। ऐसा यहाँ पर ये साइंस है। तो ये टनल को यहाँ से लिया, फिर ये देखिए अंदर टनल में आप देख रहे हैं वो ब्लू कलर का जो है वो एंड है जो हमने आपको पहले दिखाया पहाड़ के ऊपर। यहाँ नीचे से ये हम उल्टा चल रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरेगा पानी और नीचे टरबाइन में से जनरेशन होगा। तो ये उसका इंटरनल शॉट, ये देखिए। यहाँ पर आप उतरेंगे तो आपको सारा कीचड़ कीचड़ नजर आ जाएगा, तो इसलिए हमने जीप में ही रख के, ट्राइपॉड रख के इसको शूट किया इस तरह से। ये है, ये कोई टनल नहीं है, ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है मुंबई का, जिसके अंदर एक बड़ा ह्यूम पाइप है, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। देखिए आदमी को स्केल के लिए रखा गया है कि ये कितना बड़ा है, पाइप कितना बड़ा है, आदमी कितने छोटे हैं, इसके अंदर है ये। बट ये हमको हमेशा एक ऐसा इंटरेस्ट आता है यानी ज्योमेट्रिकल कॉम्पोजिशन लेने के लिए, तो ये हमको सर्कल भी बहुत पसंद है। ये देखिए ये सर्कल बहुत पसंद है। तो ये दूसरा ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है मुंबई का, जो टनल से पानी जाएगा, यानी आज़ाद मैदान से लेकर के मलबार हिल तक जाएगा। तो उसको हम करने के लिए अंदर टनल, यहाँ सफोकेशन बहुत होता है और ज़्यादा देर रुकने की बहुत यानी तकलीफ होती है ज़्यादा देर रुकने में, जो कि इतना काम करते हैं लोग करते हैं, लेकिन फिर भी होता है ऐसा। दूसरा एक ये माइनिंग प्रोजेक्ट है। तो अभी हमने दूसरे कवरेज कर ली इसमें कि भाई वो लोडिंग अनलोडिंग वहाँ से, लेकिन फिर भी एक है कि ऐसा कुछ शॉट चाहिए। अगेन ये भी हमारे दिमाग में जो फिल्में देख करके वो जो आ जाता है हार्ड डिस्क में कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो हमने ये टेलीफोटो लेके ऊपर जा करके इनको ऐसे कंप्रेस करके, फिर मुझे ये इस कंपोजिशन में ऐसा लगना चाहिए कि ये चार यहाँ प्लेसिंग है। तो उसके लिए रुकना पड़ेगा, वो ट्रक आ रहा है, जरा गया, फिर नहीं मिल रहा है, तो फिर एक रुके, फिर जब हमको सब कुछ सही जगह दिखता है तब हम दिखते। तो ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा था। ये हमारा है मुंबई की जो मेट्रो रेल है, इसके लिए भी हम एक दिन मेट्रो के अंदर जा करके पूरा यहाँ से घाटकोपर से वर्सोवा पूरा ट्रेवल किए, ये देखने के लिए कि हमें कहाँ से एक अच्छा एंगल मिल सकता है ताकि हमें, और चूंकि ये घाटकोपर से स्टार्ट होती है और वर्सोवा में एंड होती है ट्रेन, तो मैंने घाटकोपर का मेन दिखाना चाहता था यहाँ से वहाँ तक। तो फिर ये एक लोकेशन, एक अगेन बिल्डिंग की टेरेस पे गए, वहाँ के टेरेस पे गए, तो इस तरह से परमिशन लेंगे। ये वही आर्मी डे सेलिब्रेशन है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो नीचे जो आपको लग रहा है जैसे कि पानी है, वो पानी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। तो ये नाइट शॉट भी अगेन पैनोरामा बनाया। ये इंडस्ट्रियल में अगेन, जैसे कि मेरी बहुत आदत है कि मैं ऊपर के टॉप व्यू लेने के लिए इंडस्ट्रीज में क्रेन के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी क्रेन के ऊपर चढ़ना बहुत रिस्की होता है, लेकिन somehow I manage, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताने के लिए कि ये कितना क्लीन है और कितना अच्छा सिस्टम है इनका बनाने का, यानी हाउस कीपिंग इज सो क्लीन, ये पॉइंट को हाईलाइट करना है, उसके लिए ये। तो ये आपने देखा कि यहाँ से वहाँ तक पूरा, अभी ये यहाँ बिल्डिंग है ही, यहाँ पर इतनी हाइट पर कैसे आप कैमरा लेके जाएंगे, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से, अगर उनके पास कोई बड़ी क्रेन नहीं है तो मैं हायर करता हूँ वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया से हाईएस्ट। तो ये 100 फुट की क्रेन है, उसके ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और उसके ऊपर लगा करके फिर मैं ये पैनोरामा शॉट कर रहा हूँ। तो यानी पूरी प्रॉपर्टी दिखाना है, असाइनमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने आप कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आपने कभी शॉट देखा ही नहीं। तो ये इस तरह से करना पड़ा मुझे क्रेन रख करके। ये हो गया आपका। चलो इसको मेरे ख्याल से ये फोल्डर अपने लगभग कवर कर लिए। अब हम जाते हैं उस पर, एरियल पर, जो हमने आपको वहां बताया कि मैं रिलायंस के लिए काम कर रहा था। तो मैं कैसा गया, तो व्हेन यू आर ट्रेवलिंग फॉर
more than half an hour, what do you do in the helicopter? Simply you can't sit and watch the sky and no, I am restless, I must take photographs. तो भले वो विंडो के थ्रू हो, कुछ भी हो, मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उस खिड़की पे जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, और यहाँ पर the main problem is that I cannot ask the pilot to move here and there. वहाँ पर उनको गवर्नमेंट ने वो दिया है, एयरपोर्ट ने परमिशन दी है, आपको सीधे ही इसी ट्रैक पे जाना है और इसी से लाइन पे वापस आना है. इधर उधर गए तो यू आर आंसरेबल, पायलट को पकड़ लिया जाएगा, बोले आप क्या कर रहे थे, उधर क्यों गए. सो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते उनके फ्लाइट रूट में. हमें जो दिखता है वही लेना है, और वो दिखता क्या है, इतना सुंदर है. तो इसकी मैंने एक छोटी बुक बनाई थी जिसको मैंने नाम दिया है फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे हिस्से, फ्रेगमेंट्स ऑफ ए लार्ज कैनवस पेंटिंग. वो किसकी पेंटिंग है, ऊपर वाले की है. उसमें जो दिखता है, यानी सारे कलाकार इसके सामने सब बेकार हो जाते हैं, कोई है ही नहीं है, नोबडी इज लाइक आर्टिस्ट लाइक गॉड. तो ये हमारा फ्रेगमेंट्स का हम ये दिस इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया. ये है काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है और ये आंध्रा में है. ये जो बर्ड्स जो जा रही है, वाइट वाइट जो कचरा नहीं है, दीज आर बर्ड्स रिटर्निंग होम. शाम को लौट रही हैं चिड़ियां, अपने घर जा रही हैं. ये देखिए, ये किसान अपने ये दिस इज हार्वेस्टिंग. यू कैन सी दिस, ये फार्मर्स उसको कट कर रहे हैं, राइस को यानी पैडी को, और काट काट के रखते जा रहे हैं. तो इतना सुंदर एक पैटर्न बन जाता है, यानी ऑलमोस्ट लाइक ए पेंटिंग. और फिर लाइट ने और उसको ड्रामा कर दिया, शेडो मार दिए, तो बहुत ही सुंदर हो गया. ये हमने दिखा, हमको ले गए. तो अब हमको यहाँ पर एक ये भी हमारा जो कहा जाता है, मैं हर क्लास में जो कहता हूँ कि आपको देखना है, देखोगे तो दिखेगा. मैं आपको एक यहाँ, देखोगे तो दिखेगा, फिर देखोगे तो दिखने लगेगा, और फिर देखोगे तो दिख जाएगा. ये है, ये हमारे यानी मैसेज है आज के न्यू कमर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, और जो भी हैं, कि भाई आप यानी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको यही फार्मूला लगेगा. देखोगे तो दिखेगा, फिर देखोगे तो दिखने लगेगा, और फिर देखोगे तो दिख जाएगा. तो मुझे दिख गया कि अरे ये ऐसा ए शेप का पिक्चर. तो ये जो है, ये हमेशा मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ध्यान रखता हूँ, और मैं जो भी ये करेगा उसको अच्छा पिक्चर मिलेगा. यस, देखिए ये सब मुझे फ्री में मिला है. आई एम नॉट पेड फॉर दिस. ये मेरे पर्सनल पिक्चर्स हैं, जो मेरे जुनून है, मेरा जो पैशन है, उसके लिए मैंने फोटो लिए हैं. तो आई डोंट नो इफ टुडे यू कॉल इट फाइन आर्ट फोटोग्राफी और वॉट एवर इट इज, बट ये हमें बहुत अच्छा लगता है. वॉट एवर आई लाइक, आई टेक फोटोग्राफ. ये सेफ्रॉन है. सेफ्रॉन आप जानते हैं, द कॉस्टलीस्ट फ्रेग्रेंस, ये स्पाइस में आता है कैटेगरी में. वर्ल्ड का सबसे महंगा जो है खुशबू फ्लेवर है ये. बोले आप बोलेंगे इसमें कैसा क्या है, ये तो कुछ वो लग रहे हैं, क्या वो है, यानी कुछ लिविंग ऑर्गन्स है, क्या है, बट ये सेफ्रॉन है. अक्सर हम घरों में जब दूध में या इसमें कहीं भी सेफ्रॉन यूज करते हैं, तो हाउसवाइफ जो डालती है वो एक ऐसा उसके लिए चुटकी जैसा लगता है. तो मैंने भी इसको कितने सालों से, इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी ऐसे सेफ्रॉन देखा ही नहीं था कि सेफ्रॉन होता कैसे है. वो एक लगता है कुछ ऐसा. फिर मैंने इसको करने के लिए कि नहीं, इसको देखना चाहिए, और इसको माइक्रो लेंस से शूट किया है, बैकलिट किया है. और फिर इसको सबसे बड़ा काम इसमें है कि ये अरेंजमेंट, दैट टेक्स द मैक्सिमम टाइम एंड दैट इज योर विजुअलाइजेशन. ओके. और फिर जो है उसके आप आगे कैसे करना चाहते हैं, कलर डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइटिंग. ये है, मुझे ऐसा वो लग रहा है जेली फिश के जैसा. तभी आप पूछोगे कि ये किया क्या है, तो ये हुआ ये है कि ये इसको हम रखेंगे क्या. हमने एक पेट्री डिश में इसको रखा. पेट्री डिश जो है लेबोरेटरी की होती है, उसके अंदर रखा, और फिर उसमें थोड़ा यानी फोटो कलर डाला. फोटो कलर डाल के
फिर उसको धीरे से ऐसे ऐसे सरका सरका के, बिकॉज ये बहुत फ्रिजाइल होते हैं, जैसे ये गीले हो जाएंगे ये टूटने लगते हैं। तो इस तरह से हमने ये अरेंजमेंट ही है जो है, ये याद है हमारी नेशनल जियोग्राफीज के जो अंडर वाटर फोटोग्राफी में देखते हैं कि वो फिश का ग्रुप जा रहा है, उसको इमेजिन किया है। ये फ्लावर है, मुझे ऐसा लगा फ्लावर, तो इसलिए ये मैंने कलर छोड़ दिया, ये इसके ऐसे मजेंटा कलर, तो एक जैसे डिस्पर्स होता है कलर पानी में, वो अपने आप एक ब्यूटीफुल। तो ये एक, दीज आर माय पर्सनल पिक्चर्स। अगेन वही बात होती है, ये जो है ये सर्कल कैसे आए, ये एयर बबल है। हम ड्रॉपर से जब कलर डालते हैं तो एक वो बबल वहाँ रह जाता है, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए रहता है, उसी समय क्लिक करना है। तो इस तरह से ये आंखें हो गई, ये फेस हो गया, इसमें मुझे गणेश भी दिखने लग जाए या जो भी दिखने लग जाए, जैसे डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन, ये फेस दिख जाएगा कुछ हंस। तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट, फाइनली इट इज एब्स्ट्रैक्ट। अभी दूसरा फोल्डर देख लेते हैं, स्पिन आर्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। आप सब जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ के ऊपर, वो 24/7 आप हर चीजों को नीचे पुल कर रहा है। द सेंटर ऑफ अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे खींच रहा है। तो अब जो है, अभी हम डाइनिंग टेबल पर हमारे हम कांटा चम्मच या कुछ भी रखते हैं, तो क्या वो खड़े रहेंगे? नहीं खड़ेंगे। ये आप जो देख रहे हैं, यानी ये मंडेन थिंग्स जो आपके टेबल पर, वर्क ऑफिस टेबल पर जो चीजें हैं, उनको लेकर के हमने ये एक बनाया है अपना पर्सनल पोर्टफोलियो। तो इसमें आपको जो नेल की तरह से लग रहा है, ये एक्चुअली है, ये ऑफिस पिन्स हैं, टाँचनी जिसको बोलते हैं, वो देखिए। अब ये, अभी मैं आगे ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे खड़े हैं। ये देखिए ऑफिस पिन है, क्लिप्स हैं, छोटी छोटी पेपर क्लिप्स। अभी इसको आप क्या कहेंगे? स्कल्पचर है, स्कल्पचरल आर्ट है, जो भी है, फाइन आर्ट है, कुछ भी बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट है। आप नेचुरली हमको उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा जब क्वेश्चन आंसर सेशन में। इन चीजों को मैं लाइव अगर खड़ा करता हूं तो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे, इवन फॉर 1 वीक दे विल रिमेन लाइक दिस, दे विल नॉट फॉल। आप पूछेंगे कैसे? अभी वो साइंस है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा कई लोगों ने पूछा ये देखने के बाद, इसकी भी मैंने एक बुक बनाई थी, पूछा कि भाई ये आपने ऐसे नीचे रख के किया होगा, फिर फोटोशॉप में किया होगा, फिर इसको किसी से ग्लू से चिपकाया होगा, आपको जो भी आइडिया आते हैं आप सब कर सकते हैं। अभी ये देखिए बॉल बेरिंग के बॉल्स हैं। अब ये देखिए, एक ये मैजिशियन सर्कस का जो है वो कर रहा है, जगलर, ये खेल कर रहा है। आगे में सर्कस के फोल्डर में आपको वो भी दिखाएंगे कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसको इमेजिनेशन करके हमने ये किया है कि रिंग्स के ऊपर रिंग्स खड़ी कैसे रहेंगी, खड़ी हैं, देखिए। और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये मैंने सोचा कि मुझे सर्कल तो बहुत मिल गया, एक ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल ये कहाँ मिला? हमारे कैमरे के ऊपर जो स्ट्रैप लगाते हैं बेल्ट लगाने का, ये जो इसमें से निकाला मैंने, कैमरे में से निकाल के इसको लगाया यहाँ पर। ये देखिए, ये वही है, एक आंख बनाने के लिए मैंने एक छोटी बॉल रख दी, स्टील बॉल। ये देखिए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें भी मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको यहाँ प्लेसिंग करने। पहली बात तो सोचना कि मैं क्या करूँ इसके साथ। तो इसका यू स्टार्ट प्लेइंग विथ थिंग्स व्हेन यू आर प्लेफुल। अभी ओशो, आपने नाम सुना होगा, ओशो रजनीश, उनकी एक किताब है क्रिएटिविटी, और वो उन्होंने कहा भी है कि यू कैन बी क्रिएटिव ओनली व्हेन यू आर प्लेफुल। बिना मस्ती के, बिना खेले हुए, आड़ा टेढ़ा किए हुए कुछ भी नहीं पा सकते आप। आपको वो करना ही है, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव। मेरा ग्रैंडसन है छोटू, वो भी इधर आएगा, कुछ ऐसा करेगा, वैसे करेगा, पता नहीं उसमें भी ऐसा शौक आ गया है कि वो भी यानी R&D अपनी करना देखता है, और उसको टूल्स के भी बहुत शौक है। नहीं, तो ये जो मेरा ये बैकग्राउंड है, ये करने के लिए मुझे बहुत पसंद है ये शॉट।
आप देखिए, करके देखिए ट्राई आपने। ये देखिए, अभी इंडिया वाज फेमस फॉर इन एक स्नेक चार्मर्स कंट्री। स्नेक चार्मर मैंने हमने बीन बजाया, जैसे पहले हमने शॉट दिखाया हमारा बिगिनिंग का 64 वाला, कि वो बीन बजाता है तो आपका कोबरा आकर के ऐसा करता है, तो वो तो ठीक है, इन्हें रोप को भी आप कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट ए रोप ट्रिक। हमने सोचा कि हम स्टील को भी, स्टील चेन को भी हम कर सकते हैं खड़ा। ये बताने के लिए हमने इस इमेज को बनाया। ये देखिए, ये वाला देखिए। अभी ये आप आप पूछेंगे कैसे किया, मैंने बोलूँगा सिर्फ मजाक के लिए कहूँगा कि मैंने एक ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास में इनको डाल दिया और फिर धीरे से कांच निकाल दिया। इज इट पॉसिबल? तो ये जो है, ये देखिए, ये बहुत लोगों का यही रहता है कि भाई आपने इसको चिपकाया है या नीचे फ्लोर में रख करके ऊपर से टॉप से लिया है, तो आप देख लीजिए टॉप में कैसे होगा, ये सर्कल हो ही नहीं सकता, वो भी गिर जाएगी। ऐसे फ्लो फ्लैट भी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, तो ये देखिए, ये जब मैं शूट कर रहा था तो उस दिन फाइनल फुटबॉल का फाइनल मैच था, तो स्पेन वाज बिकेम चैंपियन, मतलब स्पेन जीत गया। और ये वो मेरा इमेजिनेशन है कि ये दो हाथ हैं उसके और वो बल्ले बल्ले कर रहा है, नीचे उसकी फुटबॉल है। उसी समय एक आइडिया आया स्टूडियो में और मैंने ये किया। अब ये है, अक्सर लोग बोलते हैं विल द मनी ग्रो और मनी डज मनी ग्रो ऑन द ट्रीज? नो, इट वॉक्स, डजंट ग्रो, इट वॉक्स अप टू यू। ये देखिए कॉइन्स है, ये वही है फ्रॉम जंबो टू माइक्रो, यानी बड़ा बॉल बेरिंग का। ये कहाँ से आया है? अभी इसको करने के लिए अभी मेरी बहुत रिसर्च थी, फिर मुझे कहाँ से मिलेगा, ये नया तो ले नहीं सकता, लेने के बाद इतना महंगा मैं क्या करूँगा। तो मैं चोर बाजार से जा करके, हमारा चोर बाजार है मुंबई का, वहाँ पर ये पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं जंक में। तो सब चीज़ें, हार्डवेयर, ये वो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो वहाँ से ला करके इनको फिर मैंने ऐसा सीरीज बनाया। ये देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कभी देखेंगे नहीं, दे विल नॉट बिकम योर मॉडल्स और ऑब्जेक्ट्स स्टिल लाइफ में। आप स्टिल लाइफ भी कह सकते हैं, बट आपको सोचना है। अगेन सोचेंगे कब? जब आप उसके साथ मस्ती करेंगे, खेलने लगेंगे। अभी ये देखिए, ये कि मैंने, ये है स्टील स्क्रैप है, ये लेथ मशीन वाले के पास से लेके आया हूँ मैं, और ये नीचे एक कॉइन रख दिया 1 रुपये का। लेकिन ये किस पे है? एक रिंग है, वो रिंग कौन सी है? ये हमारा उस समय हमें कैनन करता था यूज, तो कैनन के फोकसिंग रिंग के वहां पर कुछ ये है पार्ट जो खराब हो चुका था, रिप्लेस किया गया था। तो दैट अगेन इज अ जंक, वेस्ट है वो। वेस्ट से, इवन वेस्ट इज नॉट वेस्ट, इट इज मनी। ये मेरा पॉइंट है, मेरी पर्सनल फिलोसफी है कि ये, बिकॉज वी हैव इन मुंबई millionaires who are selling junk. Scrap iron dealers are so big, पूरे ऑल ओवर इंडिया या पूरे वर्ल्ड में। उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो किससे कमा रहे हैं? इससे, स्क्रैप में से। स्क्रैप, इवन स्क्रैप इज मनी एंड गोल्ड। तो ये मेरा पॉइंट था कि ये पैसे को डालने से जो कचरा फेंक देना चाहिए। ये देखिए अगेन, आप बोलेंगे ऐसे आपने सेलेक्ट कर दिया, ऐसा कर दिया और करके कर दिया, तो आप कर लीजिए अगेन। तो यहाँ पर हमारा ये फोल्डर खत्म होता है। अब हम आते हैं सर्कस। अभी हुआ बात सर्कस की कैसे आई कि मैं एक बार जबलपुर में था, जबलपुर से मैं मुंबई आ गया था 67 में, तब से फिर मुंबई में सेटल हो गया हूँ। तो वहाँ एक जब टाइम पास था, देखा शाम को सर्कस चल रहा है। अभी सर्कस का नाम आया तो बोले हम लोग अक्सर जो है, ठीक है क्या सर्कस में क्या देखना है, वो तो बच्चों का काम है ना, ऐसा छोड़ देते हैं। और बड़े हो जाने के बाद हमने बचपन में जो सर्कस देखा था बस वही याद रह जाता है। लेकिन सर्कस देखा था तो हमने कहाँ से देखा था, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखा था आपने, अगर आगे की टिकट खरीदी है तो सर्कल वाली, तो आप यू आर द क्लोजेस्ट टू दी आर्टिस्ट, यानी आप पूरे उसके रिंग के पूरे के नज़दीक में आ गए हैं, बालकनी में जैसे बोलते हैं ना, तो वो वहाँ पर आ गए हैं।
और वहां से जो भी होगा, आर्टिस्ट आएंगे, जो भी शो होगा वो आपके सामने से निकल जाएगा। लेकिन दूसरे जो देखे हैं उन्होंने कहाँ से देखा, तीसरे ने कहाँ देखा, पूरा सर्कल है, सबने अपनी अपनी निगाह से देखा, अपनी जगह से देखा, उन्होंने पूरा सर्कस या पूरे व्यू पॉइंट नहीं देखे। तो वो हम उसको बताने के लिए पहले हमने टिकट खरीदी, ये पूरा खाली सर्कस। तो ये हमने अगेन अपने आप में एक प्रोजेक्ट किया कि चलो ये करते हैं। अभी परमिशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि परमिशन के लिए जैसे आप बोलेंगे फोटोग्राफी करने आते हो तो आप हमारे पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स का फोटो लेकर के आप, जो मेनका गांधी ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नो क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तो वो आप नहीं करेंगे, आप ले लेंगे और दे देंगे प्रेस में, हमको नहीं देना फोटो। जैसे तैसे समझा के कि मैं एक बुक कर रहा हूँ सर्कस के ऊपर, और मुझे एक पहचान निकाली, और फिर वहाँ से उन्होंने परमिशन दी। तो ये हमने, अब यहाँ एक ही सर्कस नहीं है, एक सर्कस को आप कितना करेंगे? आप पूछेंगे कि भाई आपने एक शो में, इसका नाम हमने लिखा, इसका थीम क्या है? 3 आवर्स। इस बुक का नाम है और इस एग्जीबिशन का नाम है 3 आवर्स, 3 घंटे का। तो राज कपूर का फेमस गाना है, ए भाई देख के चलो। ये जो है खेल है 3 घंटे का, यहाँ छोटे को भी, बड़े को भी, मोटे को भी, दुबले को भी आना, नाचना, गाना पड़ता है। ए भाई देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी। ये जो है ये सारा फोटोग्राफी है, ये पूरा हमारा गुरु है। ये जो गाना है इसमें मुझे इतना सीखने को मिलता है, हर किसी को सीखने मिलेगा अगर आपने इन वर्ड्स को जो फॉलो किया। हाँ, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, रोड क्रॉस करनी है तो आप क्या करेंगे? आगे भी नहीं, बाएं भी नहीं, ये ना, ये सब जो है, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप सब कुछ देख रहे हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। आप करेंगे तो आपके कॉम्पोजिशन, आपकी फ्रेमिंग ये बिल्कुल सही होगी, जो चाहे वैसी ही होगी। तो बात हो जाती है, ये 3 आवर्स को, एक दिन में 3 शो होते हैं और देयर इज नो इंटरवल। तो 3 घंटे का शो, उसमें आप एक शो में जो आर्टिस्ट करेंगे, आपने शुरू से आखिरी तक कितना शूट किया कर लिया, लेकिन ये फिर भी ये नहीं है। दूसरा सर्कस, दूसरा, तीसरा सर्कस, तो ऐसे हमने 3 सर्कस और 4 शो कवर किए, और उसका ये है, एक ये कलेक्शन है, निकाल के हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, जो ऑर्केस्ट्रा वाले ऊपर बैठते हैं, जो म्यूजिक है, इसमें सर्कस में आपने देखा होगा कि एक चीज है कि सारा जो खेल है, सारा खेल है साउंड के ऊपर है, यानी ऑडियो ही इंस्पायर करता है इनको, आर्टिस्ट को। छन 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 छंग, यानी जब ये हुआ, दैट इज ए क्लू कि भाई आपको वो छोड़ना है ट्रेपीज में, और उस ट्रेपीज में जाना है, और वहां से उस आर्टिस्ट को इधर आना है। ये जो हर उसमें, तो ऑर्केस्ट्रा जो साउंड है जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही के क्लू पर चलते। उसमें जरा भी मिस्टेक हुई या सिंक्रोनाइजेशन में मिस्टेक हुई तो सीधे वो आर्टिस्ट नीचे गिरेगा। तो ये है, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि उसको क्या दिखता है, और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, जो म्यूजिशियन है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है कि ये ऊपर जाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर वो वापस सिग्नल देगा म्यूजिक से। उनकी ये अपनी ट्रेनिंग है, जैसे आपस में कि भाई हाँ हमको ये मिला, मतलब हम वी आर रेडी, ओके। तो ऐसे होता है, ये वहां से ऊपर चढ़ रहे हैं, एज इफ दे आर गोइंग इनटू द स्काई। ये हमारी इमेजिनेशन है कि ये चढ़ के ऊपर आकाश में चले जाएंगे, बिकॉज दे गो इनटू द डार्कनेस टोटली, है ना। तो ये, फिर ये जो है, अभी हम नीचे खड़े हैं, अब नीचे खड़े होकर हम इधर घूम रहे हैं, तो हमको शाउटिंग हो रही है पीछे से कि जरा हमको नहीं दिख रहा, आप हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। ये ऊपर के शो के लिए तो नहीं होता है, यानी ऊपर के शॉट के लिए नहीं, नीचे जो भी चल रहा है एक्सरसाइज, वो इवेंट, तो उसमें ये लोगों को, ऑडियंस को डिस्टर्ब होता है, तो मुझे घूमते रहना पड़ता है, सो दैट आई डोंट गेट शाउटिंग ऑन मी। तो ये अभी हमने, अभी यहाँ पर इतना मुश्किल है, आप फोटोग्राफर हैं, आप जानते हैं कि ये टोटल यू आर फेसिंग द लाइट, इट इज लाइक फेसिंग द सन, है ना। इतना पूरा अगेंस्ट लाइट है, पूरा का पूरा, सब फ्लेयर आ जाने वाली है, फिर भी आपको लाना है। तो फिर अगेन यहाँ पर आपका एक ये भी हो जाता है कि हर लेंस से पॉसिबल नहीं, अच्छे लेंस होंगे, अच्छा कैमरा होगा, उसमें ये आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने ये ला दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट द कैमरा इज ऑल्सो। तो ये हो गया, इसने छोड़ा। अभी भाई यहाँ पर देयर इज नो रीटेक,
आप सब जानते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अगर आपने नहीं क्लिक किया तो अगले शो में आइए, अगले शो में यही चीज आपको रिपीट होगी कि नहीं होगी, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जो मिलेगा वो अलग ही होगा, हर बार अलग होगा, होगा वही, गिरना, छोड़ना, पकड़ना, लेकिन वो अलग होगा। ये हमारा, तो यहाँ से हम शॉट ले रहे हैं। देखिए, ये इसका पजामा खींच लिया उसने, यानी ये थोड़ा ह्यूमर भी होता है। जो ये एक्चुअली जोकर है जो ऊपर चढ़ गया था, ये बताने के लिए, माने ऑडियंस को बताने के लिए कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी जैसे करते हैं भी, लेकिन वो ये जोक करने के लिए उसका पजामा ही खिंचाता है, उसका पैर नहीं पकड़ता है वो। तो ये अरेंजमेंट रहता है टोटल, पार्ट ऑफ द शो। अब ये भी इतनी फास्ट लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं, आपने सोचा कि वो मिस हो गया, अरे नहीं मैं और करता हूं, तो नहीं, वो कितने राउंड राउंड होंगे वो भी लिमिटेड होते हैं, तो आपको उसी के अंदर करना है, नहीं तो फिर प्लीज कम इन द नेक्स्ट शो अगेन। तो ये बहुत टफ असाइनमेंट था, लेकिन वो मैं इसीलिए अलग अलग करके, बस इससे ज़्यादा नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती थी। देखिए, ये अक्सर ये नीचे करते हैं लोग, ये जो हुला हुप जो बोलते हैं, ये सर्कल, ये लड़की ऐसे नीचे करती है, लेकिन ये इसने ऊपर करके उसके और स्किल बताने के लिए ये ऊपर चली गई और ऊपर से कर रही है। ये बिल्कुल नहीं गिरेंगे, रिंग्स सब उसके साथ बॉडी के पास ही घूमते रहेंगे ये बताने के लिए, और फिर तालियां बजेंगी, और ये दिस इज व्हाट, ये दांत से पकड़े हुए हैं, ये भी ये सब जो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कस ना। अब यहाँ पर हमारा फ्रेमिंग भी देखिए, मैंने ये जो उसको लिया और ये घूम रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसके पैर के बीच में ये लड़की देगी, तो यानी ये मेरा सोच है यहाँ पर। उस समय लिया तो मेरे जो पूरा मुझे जो चाहिए था वो मिला। अब ये जो था, ये एक मोटी औरत, और लड़की नहीं है, औरत ही है वो, तो वो ये मोटरसाइकिल पर कर रही है। उसमें अब करते करते, उस समय मैंने नहीं सोचा कि मैं इसकी एक सीक्वेंस बनाऊंगा, लेकिन एक ही जगह रहा मैं अपने हाथ को भी स्टडी किया, ट्राइपॉड तो अलाउड है ही नहीं है यहाँ पर, तो आप एक ही जगह रख करके हमने किया। उसकी ब्यूटी देखिए, ये पहले खाली कप है, फिर कप ने पहले कप लिया उसने पैर में रख के, फिर कप ऊपर के सॉसर गई, सॉसर के बाद ये किया, और लास्ट ये गई, और लास्ट में चम्मच जो है, स्पून गोज एग्जैक्टली इनटू द कप। ये सीक्वेंस हमें फिर बाद में एडिटिंग टाइम पर मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया बन गया हमारा। फिर हमने थोड़ा सा उसमें वो किया है फोटोशॉप कि भाई पीछे बैकग्राउंड जो है डार्क कर दिया, बस इतना ही किया है। जैसे डार्क रूम वर्क बोलते हैं, जो आजकल लाइट रूम हो गया है, पहले हमारा डार्क रूम होता था फिल्म के ज़माने में। देखिए, ये देखिए आपका, यहाँ पर हमने उनसे यानी वो गारंटी दी थी, एश्योरेंस दी थी कि हम आपको इसको अगेंस्ट नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, हम आपको किताब में यूज करेंगे, तारीफ करेंगे, बट दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद जो है पूरा बैन आ गया है, इवन डॉग्स ऑल्सो बैन, बर्ड्स ऑल्सो बैन। तो अब जो ये काम करना पड़ेगा सिर्फ आदमियों को ही करना पड़ेगा, थैंक्स टू मेनका गांधी। अब ये कुछ पोर्ट्रेट है जो मैंने एग्जीबिशन किया था जहांगीर आर्ट गैलरी में, और फिर यही शो मैंने कलकत्ते में किया था, तो ये बहुत पसंद आए थे, वो फॉरेनर्स लोग ने भी कुछ प्रिंट लिए थे। ये पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ, आई एम कॉलिंग बिहाइंड द सीन पोर्ट्रेट। अरे इनकी साइकोलॉजी, जो हमारा एक बहुत ज्यादा थीम जो चलता है फेसबुक पर भी, बॉडी लैंग्वेज जो है इनकी इतनी बढ़िया रहती है, जो हमको दिख रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। उसने अगर हाथ रखा है इसके पीछे, तो वो जो है इसने नीचे रखा है, नीचे हाथ रखा है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्टिफ हो गया, ये थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये भी आप, अगर आपने एनिमेशन समझते हैं, या आप अगर आपको ये समझना है, तो आप स्लो मोशन में शूट करिए इनको, एनिमल्स को, उनके जो वॉल्ट डिस्ने करता था टू स्टडी द जेस्चर्स ऑफ एनिमल्स। तो ये, और ये लड़की जो है, ये कोई मॉडल तो है नहीं है अभी वो, और हम इनको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि यू स्माइल, उन्होंने ओके, तो वो एक तरह से पूछ रही है कि मैं क्या करूं, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो वो शर्मा रही है और मुस्कुरा रही है, बस दैट्स इट। वही तो चाहिए, दिस इज बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू डू नथिंग। ये नथिंग के ऊपर बात है कि हमने जो एक टोरे साड़ीज के लिए 1980s में
1980 में जापानीज सारी टोरे, उसके लिए शूटिंग की थी दीप्ति नवल और सारिका की, जो फिल्म स्टार्स की, उनके लिए यानी पोस्टर बनना था और ये था पूरे पब्लिसिटी के लिए। हमने होटल सी रॉक में किया। वो एक दिन में 20 साड़ीज करनी थी दोनों आर्टिस्ट को मिला करके। तो जापानीज लोगों ने, सॉरी मैं ये इसमें बीच में लेके आया हूँ लेकिन चलेगा, तो वो बात वो हुई थी कि दीप्ति नवल ने पूछे कि भाई व्हाट डू आई डू, क्योंकि इनको फिल्म स्टार को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोना धोना जो भी करना है। दे आर नॉट यूज्ड टू डूइंग नथिंग। तो ये फिलोसफी की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, ये डू नथिंग। तो हमने इसको कुछ नहीं बोला, जो दीप्ति नवल को बोला डू नथिंग, तो बोले नथिंग मतलब, उसने थोड़ा सा ऐसा मुस्कुराई और वही पिक्चर पोस्टर बन गया, जो कि सिंगापुर, दुबई, सब जगह बड़ा बड़ा पोस्टर छापा गया। 90 वो पोस्टर मेरे पास अभी भी है, बहुत सुंदर। तो ये बात होगी कि नथिंग, डूइंग नथिंग। ये देखिए, अब ये लड़की जो है, इसके साइकोलॉजी ये अंदर है कि मैं भी कोई मॉडल से कम नहीं हूँ। वो अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के आती है और जितना बेस्ट वो कर सकती है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। और अगेन इसमें भी कोई नो डायरेक्शन, सिंपली जस्ट शूट एज दे आर। अब ये जो है, हमने सिर्फ ये कहा कि आप ये बंदूक को यहाँ रखिए और आप जोकर हैं तो आप कहने, बस इसने थोड़ा सा ये थोड़ा डायरेक्शन दिया कि ये पजामा उठाइए, बस दैट्स इट। दिस वाज आल्सो माय पोस्टर एट द एंट्रेंस ऑफ द गैलरी। ओके, ये हो गया हमारा खत्म। अब ये कहानी शुरू होती है 2007 में। मैं कहीं जा रहा था मुंबई के बाहर असाइनमेंट पर। एयरपोर्ट पे हम अक्सर थोड़ा टाइम रहता है तो बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ हम बुक शॉप में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या खासकर फोटोग्राफी की बुक्स कौन सी हैं, कैसे नहीं। तो हमने एक इटालियन फोटोग्राफर की बुक देखी गंगा के ऊपर, वो हमने खरीद ली 4000 में। आई पेड 4000 रुपीज फॉर दैट बुक जस्ट टू सी व्हाट इज इनसाइड। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैं एकदम घबरा गया कि मैंने कहा कि एक फॉरेनर इटाली से आता है, वो गोमुख से गंगोत्री से गोमुख तक जाता है और किताब बनाता है और जो हमें बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं, हमारी गंगा को ही हम उनसे खरीद रहे हैं, उनकी बनाई किताब। फिर मैं एकदम घबरा गया। मैं क्यों घबरा गया? क्योंकि मैं नर्मदा नदी में बड़ा हुआ हूँ। मैंने जो आपको पहले पिक्चर दिखाए हमारे, जो ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें उस समय जो हम अक्सर कुछ भी होगा तो मैं स्कूटर पे कैमरा लेके वहाँ चला जाता, यानी उसमें मैं स्विमिंग भी की है, पूरा सब कुछ की है। यानी छोरा गंगा किनारे वाला नहीं, छोरा रेवा किनारे वाला है। नर्मदा को रेवा कहा जाता है संस्कृत में। तो मैं इतना बड़ा हुआ, वहाँ पर सब कुछ किया और फिर मैं भूल गया नर्मदा को, क्योंकि बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में अपना कैरियर बनाने के लिए 40 साल तक मैं नर्मदा को भूल ही गया। फिर जब ये किताब देखी तो मुझे याद आया कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। नहीं, इससे पहले कि कोई फॉरेनर आ करके नर्मदा को शूट कर ले और हम देखते रह जाएं, मुझे शूट करना पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा प्रोजेक्ट नर्मदा। तो नर्मदा की एक परिक्रमा की जाती है, यानी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट से पूरा का पूरा। ये उनका रिचुअल है, मतलब क्या प्रोटोकॉल है कि भाई आपको, अगर आप नॉर्थ से जाए तो नॉर्थ से पूरा, नॉर्थ बैंक से पूरा वहां तक चले जाइए समुद्र तक, एंड समुद्र से वापस साउथ बैंक में जाइए एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर। ये है होली इसके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कि परिक्रमा करनी है तो एक किनारे से जाते हुए समुद्र में जाइए, दूसरे किनारे से जाइए और फिर आपने पॉइंट तो आप स्वर्ग में जाएंगे, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। तो अब हम तो ये नहीं कर सकते, और इसको करने के लिए, और ये लोग पैदल करते हैं या कहीं से जाते हैं, तो इसको लगते हैं 3 साल और 3 महीने। मैं तो इतना टाइम दे नहीं सकता। तो मैंने अपना इसको परिक्रमा के जैसा ही किया, लेकिन कानून तोड़ते हुए किया। अब हमें ये देखना है, हम गूगल में सर्च कर रहे हैं कि ये रिवर जाती है कहाँ कहाँ, हम कर सकते हैं कहाँ कहाँ, कितने फेस्टिवल होते हैं, कब कब होते हैं। तो मुझे एक ही जगह नहीं करना, सिर्फ जबलपुर में ही कर लेना है। हम कर सकते थे, पूरी किताब हम जबलपुर में बना सकते थे, ये सीन जबलपुर का है, लेकिन वो नहीं करना था हमको। जैसे गणेश कहीं और करना है, दुर्गा कहीं और करना है, जितने फेस्टिवल होते हैं इस रिवर के किनारे और इंडिया में, वो सब सेलिब्रेट करते हैं डिवोटीज अपने अपने
जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने अपने घाट के ऊपर, तो घाट पे तो जैसे नर्मदा जयंती है, नर्मदा जयंती यानी बर्थ डे ऑफ नर्मदा। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में सारे लोग गंगा पे ही क्यों करते हैं? क्या गंगा ही नदी है? एक्चुअली गंगा जब नहीं थी, हिमालय जब नहीं था, तब से नर्मदा है। इट इज डायनासोर के टाइम से नर्मदा है इस प्लेनेट पर। गंगा नहीं थी, हिमालय नहीं था, गंगा तो बाद में आई, हिमालय से निकल के आई। तो ये पॉइंट प्रूव हो चुका है और आप देख सकते हैं, आप नेशनल ज्योग्राफी में देख लीजिए। तो अब हमको इसलिए इसके ऊपर क्यों नहीं की जाए, हमने इसलिए खास इसको चुना और इस पर शुरू किया काम। अब यहाँ से हम कहाँ से जाएंगे, क्या अपनी सेविंग से, देयर इज नो फाइनेंसर नो पब्लिशर, तो पूरा फाइनेंस हमने किया और शुरू किया दौर। तो ये उसका कवर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आगे बढ़े हम। हाँ। ये साधु बाबा, इसको हठ योग बोलते हैं, ये कर रहे हैं। ये है भरूच में नर्मदा किनारा है, यहाँ से लोग पानी, पीने का पानी भी नर्मदा से भरते हैं। और ये साधु जी का आप देख रहे हैं कि ऑक्सी रिच मिनरल वाटर लगा हुआ है इनको। ये लग्जरी बाबा हैं जो भी हैं इसका पानी नहीं पिएंगे, जिसको मानते हैं ये ऑक्सी रिच। ये एक थोड़ा सा हमको ह्यूमर लगा इसमें, और इसको ये शॉट लिया। ये जो है ग्वारी घाट जबलपुर का है। इसमें हमने ये देखा कि स्टेप्स के ऊपर जो ग्राफिटी किया हुआ है, और यहाँ पर हमको सिर्फ हमारे ये लेते हैं, अगर माइनस ये दो गांव वाले विलेजर्स के छोड़ के लेते तो वो कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी वॉल बिल्डिंग, कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। लेकिन वो 3 डायमेंशन लाने के लिए, 2D सब्जेक्ट को 3 डायमेंशन लाने के लिए इनको बैठा हुआ लिया, और वो इनके कपड़े ने भी एक हमको फॉल दे दिया, यानी ये इंडिकेट करता है कि स्टेप्स हैं। सिर्फ इस एरिया से इंडिकेट होता है कि ये दीज आर स्टेप्स, बट पेंटेड स्टेप्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ये जो है क्रोकोडाइल्स, नर्मदा की जो स्टैचू है, जो ओरिजिनल नर्मदा माता जिसको बोलते हैं, नर्मदा मैया बोलते हैं, उसे उनका हमारे माइथोलॉजी में जितने गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, सबका एक न एक कैरियर होता है जिसके ऊपर बैठ के वो जाते हैं, है ना। तो हर एक का है वो, अब हम आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नर्मदा का है क्रोकोडाइल के ऊपर वो बैठी हुई हैं, और वो उनकी सवारी करती हैं। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल हैं नर्मदा में। अब हमने इतना यहाँ से शुरू किया, अमरकंटक से लेके भरूच तक, जहाँ समुद्र में नदी जाती है, फ्रॉम सोर्स टू द सी, वो पूरा किया। लेकिन हमको क्रोकोडाइल कहीं नहीं दिखे। अब इसके ऊपर रिसर्च किया कि कहाँ जाए, सब पूछ के पास के, अभी वापस पता लगा कि ये जो है वहीं पर सरदार सरोवर डैम के पास में ही एक कुंड में एक क्रोकोडाइल्स रहते हैं। अब उस समय जब हम गए वहाँ पर, वो समर था, समर में देखा तो वो सब अंडर वाटर हैं, सिर्फ 2 आंखें दिखती हैं। तो हमारा एक फोटोग्राफर स्टूडेंट है वहाँ पर केवड़िया ग्राम में, वाटरफॉल अपने डैम के पास, तो वो उसने कहा कि सर ये तो अभी आपको नहीं मिलेंगे, उनकी बॉडी देख ही नहीं सकेंगे, वो उनको बहुत गर्म लग रहा है, तो आप क्या करिए विंटर में आइए। तो अब मैं ये क्रोकोडाइल शॉट लेने के लिए फिर मैं विंटर तक रुका। फिर विंटर में जा करके मुझे देखा कि ये लोग ये वहाँ के दिन भर सुबह निकल आते हैं, जैसे सनराइज होता है, टू गेट सन बाथ। ये ऐसे देयर आर 13, मेरा पैनोरामा पिक्चर है, तो 13 क्रोकोडाइल्स आर रिलैक्सिंग इन द सन, टेकिंग सन बाथ। ये ऐसे अभी बुक की कितने पेजेस की बुक होनी चाहिए, तो वो हमारे कुछ ने कट करते 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 कवरेज तो इतनी हो गई, मुझे 2007 से 2012 तक 5 साल तो लग गए शूटिंग में, क्योंकि वो एक साथ तो मैं कर नहीं सकता। जैसे जैसे थोड़ा सेविंग किया फिर, तो वो 5 साल में फिर मैं इतने इमेजेस हैं कितनी करूँगा, बुक्स एंड बुक्स हो जाएंगी। तो अभी इसको हाउ टू शो मैक्सिमम, तो ये आइडिया आ गया कोलाज का, कोलाज कर दिया। तो बैक यानी फ्रंट इनर कवर, बैक इनर कवर, दोनों में ऐसे हमने कोलाज बना करके जिन जिन लोगों को मैंने देखा, जैसे ऐसे जो दे आर ऑल डिवोटीज, और इसको बोलते हैं ना यात्री हैं, ये लोग परिक्रमावासी बोलते हैं उनकी भाषा में, परिक्रमावासी। तो ये जो है जहाँ जहाँ मिले, कुछ साधु भी हैं, कुछ वहाँ पर भी हैं,
ये इसमें आदिवासी भी हैं, जो भी कुछ किनारे किनारे सब रिप्रेजेंटेशन उसको ये किया, जैसे बनाया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये है उनकी नर्मदा जयंती जबलपुर में ही, तो इसमें ये लोग उस दिन ये पूरी साड़ी पहनाते हैं, जो कि कवर में है मेरे, कि चुनरी बोलते हैं इसको, कोई लोग चुनरी बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं, नदी के इस पार से उस पार तक लगाई जाती है और फिर उसको नीचे उतारा जाता है, पानी में बात करके फिर उसको निकाल लिया जाता है और फिर उसको प्रसाद में दिया जाता है। तो ठीक है, और उस समय ये लोग जो है अपने फ्लावर थ्रो, तो मुझे ये अच्छा लगा। अगेंस्ट लाइट पिक्चर, ये देखिए, अब ये आपके दूध, अभी कितना दूध डालोगे इसमें, तो इससे कहीं सफाई नहीं हो सकती, इसलिए एनवायरनमेंट में अभी ये इससे ज़्यादा तो आपने डाल दिया ये सागर। लेकिन ये फिर भी लोग जो है लोग कहते हैं कि भाई इससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता है, ये तो है ऑर्गेनिक है, ये गल जाता है और इट बिकम्स अगेन मेल्ट, तो ये कोई वो नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, बायो है, तो बायोडिग्रेडेबल है। दूध चला रहे हैं, ये जो नदी देख रहे हैं ऐसा है। अभी जबलपुर में जो एक पहले ब्रिज हुआ करता था, ये हमेशा डूब जाता था, मतलब सबमर्ज हो जाता था मानसून में। ये नागपुर जाने का, जबलपुर टू नागपुर का हाईवे पर ये ब्रिज था, फिर वो ऐसा होने लगा तो फिर उन्होंने बड़ा ब्रिज बनाया, उस ब्रिज पर से मैंने ये फोटो लिया है, अबेंडेंड ब्रिज। लेकिन अब वो खाली ब्रिज लेता हूँ तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है, तो जस्ट पेटेड, ये गांव वाले इधर से स्कूल के बच्चे यहाँ जाते हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, एंड उससे मुझे दो चीज़ें हो गई, एक मेरा स्किल भी मिल गया और एक एलिमेंट हो गया बैलेंस करने के लिए। इट्स नॉट ए डेड थिंग, इट इज लाइव। अभी यहाँ अगेन एरियल शॉट लेने के लिए इनका जो केबल कार है, यहाँ केबल कार पहले नहीं थी उस जमाने में जब हम वहाँ पर, ये अभी लेटेस्ट वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बैठ करके हमने यहाँ से लिया। यहाँ रोक नहीं सकते हम केबल कार को भी, जो अपनी चली जाएगी उसी में अपने को, और एक बार में मिस हो गया तो अगेन कम बैक, गो फॉर सेकेंड राउंड, फिर पैसा खर्चा करो और फिर दोबारा जाके जो मिस हो गया है उसको करना। तो इस तरह से ये भी हमारे बैकग्राउंड में, ये पेनोरमा है। ये वर्ल्ड में एक यूनिक जगह है जहाँ पर मार्बल रॉक्स की तो माइनिंग आप होती है। ये रॉक्स जो है, इसका स्लैब काम नहीं आता है फॉर कंस्ट्रक्शन, नो। इसके पीसेज जो चिप्स करते हैं, चिप्स करके उसको टाइल्स में बनाया जाता है या फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसमें एक इसी में जो और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्टोन, दैट इज कॉल्ड सोप स्टोन, वो जो है उसका पाउडर बनता है, जो टेल्कम पाउडर बनता है, उसके लिए वो बेसिक रॉ मटेरियल है, तो वो है। तो ये इसी पीस में पूरी रिवर में ओनली दिस पैच जबलपुर में मार्बल रॉक्स हैं दो तरफ, और वो कलरफुल हैं और सदियों से हैं, ये कट कट करके ऐसे हो गए हैं। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, इट्स ए ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, ओके, एंड यूनिक इन द वर्ल्ड। अभी फिर वहाँ पर यही कि कैसा कुछ नया पिक्चर बनाया जाए, वाटरफॉल वो है, ये एडिशनल है, ये पूरा का पूरा चौड़ा, यहाँ से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं वो भी गिरती हैं, तो दे फॉल लाइक ए वाटरफॉल, फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो वो हमने वहाँ पर यहाँ से जाती है, दोनों जाकर के आगे वो मेन कोर्स में मिल जाती है रिवर, फिर वहाँ से बोटिंग शुरू होती है, ऐसा है इसका। तो पेनोरमा किया हमने ये, तो मुझे ये देखने मिला। ये वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उनकी जिस कॉल्ड मास मैरिज, मास वेडिंग, ये सेरेमनी होती है, ये फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें इन लोगों को ये सब डाउरी में गवर्नमेंट देती है सामान, उसमें ये छाता भी है, ये भी है, कपड़े भी हैं। तो अभी ये लोग एक आते हैं, इनकी जो लड़कियां हैं, लड़के जब सेलेक्ट किए जाते हैं और एक दिन में वो खत्म हो जाती है शादी, तो फिर मेहंदी लगती है वगैरह वगैरह, पूरा वो कवरेज है हमारे बुक में, और वैसे भी है। तो लेकिन मजेदार इसमें मुझे क्या लगा कि ये बिकॉज अम्ब्रेला इज गिवन टू देम, द प्राइस टैग इज ऑल्सो नॉट रिमूव, दैट इज ऑल्सो देयर, इट्स अ फनी थिंग। और उनको छतरी पकड़ने को कहा, क्या गॉगल भी पकड़ लिए, लेकिन सनलाइट तो यहाँ से आ रही है नीचे से, तो छतरी आपने ऊपर पकड़ी, ऊपर से तो धूप है ही नहीं, देयर इज नो सन ऑन द टॉप, सन इज ऑन द क्रॉस 45 डिग्रीज, लेस देन 45 डिग्रीज। लेकिन तो ये बड़ा ह्यूमरस हमको लगा पिक्चर। जी देखिए,
Again, there is no retake. This man was jumping like this. I'm from the bridge. I'm taking this. अभी ऐसा लगता है कि गिरेगा, रॉक से ऊपर गिरेगा, क्या होगा, कितना इंजरी हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होता. They just play and swim like this, dive like this. ये एक है, ये ब्रिज है जो वो बड़ा बनाया गया है. अभी चूंकि उस डैम की सरदार सरोवर की डैम की हाइट उस समय कांग्रेस ने मना कर दिया था, गवर्नमेंट ने, तो फिर वो हैंग हो गया, कोर्ट केस हो गया अपना. ये भी इसने भी, मेधा पाटकर ने भी कहा कि भाई हमारा वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन लोगों का, ट्राइबल्स का, तो देयर इज नो कंपनसेशन वगैरह वगैरह. आप तो उसके डैम की हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, वो कितना सबमर्ज हो जाएगा, कितने गांव डूब जाएंगे, कितने मंदिर डूब जाएंगे, जो कि हुए हैं. तो इन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है कि अब जो अभी नाउ लेटेस्ट पोजीशन इज कि दे हैव इंक्रीज द हाइट आफ्टर मोदी केम इन, एंड हो गया और वो बन गई है. अभी आई थिंक लास्ट वीक ही ओवरफ्लो हुआ था, अदरवाइज पूरा इतना हाइट बढ़ने के बाद अब जो पानी नीचे गांव डूबेंगे वो यहाँ तक आ जाएगा. The ghat will be submerged, but transportation will continue because they have increased the height of the bridge. Anyway, अभी मैं और जल्दी करता हूँ. ये देखिए, ये शॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है. बता देना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये ट्रेन भी दिखानी है और रोड ट्रैफिक एंड ट्रेन ट्रैफिक, तो वो भी दिखानी है. और वो कहाँ से हो सकता है, एंगल से लेंगे तो मजा नहीं है. ये मुझे आज कैसे ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई एकदम दिमाग में था, पुरानी हॉलीवुड की फिल्म ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई. तो अभी यहाँ मैंने छोटी बोट ऐसी हायर की, लड़कों 2 बच्चों को पकड़ा और हमने कहा मुझे यहाँ से तुम ले चलो. वहाँ लेके आए. अब हमने पूछा, अब हमारा फ्रेम तो बन गया लेकिन हमारी बोट मूव करना चालू है. फिर हमने बोला अच्छा अभी ट्रेन कब आएगी, तो बोले नहीं अब साथी होगी, अभी थोड़ी देर में आएंगे. थोड़ी देर करके 1 घंटा हो गया, ट्रेन का पता ही नहीं. और हमारी बोट पानी के फोर्स में आते आते ये नीचे आ गए. हम नीचे आ गए ब्रिज के. और मैंने ये क्या हो गया, हमें शॉट तो पीछे से लेना था, यहाँ क्या हो गया. फिर पीछे लेके गए उन बच्चों को, फिर बोला पीछे ले जाओ, अब यहाँ पर तुम एंकर करो. तो वो बच्चे लोग पत्थर रखते हैं अपने उसमें, तो पत्थर नीचे डाल करके बोट को यहाँ रोका गया, जिस स्पॉट पर मुझे मेरा कंपोजिशन सही लगा. अब रुकना था बोट के ट्रेन के लिए, तो ट्रेन आई इस तरह से, तो फाइनली आई गॉट दैट. लेकिन उस समय जब ट्रक चाहिए तो ट्रक नहीं होगा, ट्रेन होगी, लेकिन दूसरा कुछ और होगा. तो ये जो टू सिंक्रोनाइज बोथ द थिंग्स टुगेदर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट फाइनली मैनेज. मुझे अभी ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है. और यहाँ पर मैं अपना वही जो हमारी ट्रेनिंग है, कमांडो की ट्रेनिंग है ऑडियो विजुअल के टाइम से, जिसको मैं आज भी बरकरार करे हूँ. और मुझे I feel proud कि I am able to maintain that style. तो मैं पहले वहाँ से लेता हूँ, ये स्पोर्ट में जाता हूँ. ये नर्मदा जयंती का शॉट है. यहाँ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ के साथ हवन कर रहे हैं. यानी उनके लिए स्पेशल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इरेक्ट किया गया है और वो वहाँ बैठ के, तो मुझे वहाँ पूरा प्रेयर्स उनके जो हवन कर रहे हैं उनका लेना था, दूध गिरा रहे हैं. वहाँ से शॉट लेके बोट में से गया. फिर मुझे अभी शॉट यहाँ से लेना था, एरियल शॉट. तो मैं तुरंत के तुरंत बोट वाले को बोला पीछे लेके जा, यहाँ से ले गया. यहाँ से दौड़ते हुए ट्राइपॉड लेके, यहाँ मेरा छोटा ब्रदर ट्राइपॉड के साथ वेट कर रहा था. जैसे ही मैं इधर आया, ट्राइपॉड उससे लिया, हमने कहा तुम यहीं रुको, तुम डोंट वरी, मैं भाग रहा हूँ. मैं भाग के ऊपर आया, टेम्पल के ऊपर टेरेस पे चला गया. वहां से तो नॉर्मली सच थिंग्स आर डन विद मल्टी कैमरा सेटअप. यानी एक फोटोग्राफर को आप ऊपर लगाएंगे, एक को नीचे लगाएंगे, एक को दूसरा, यानी मल्टी कैमरा सेटअप होगा टू गेट वेरियस एंगल्स एंड देन कंबाइन देम. ये मैंने इंस्टॉल 1 मैन शो. वहाँ से लिया, इधर लिया, फिर उधर से लिया, उसके पहले लिया, शाम होने के पहले लिया. ये जो है थाउजेंड्स ऑफ ऑयल लैम्प्स आर फ्लोटिंग. ये इट्स अ रिचुअल कि उस घाट से ये सब लोग जो हैं ये दिए को फ्लोट करेंगे और फिर वो बहते बहते इधर आएंगे. वो डेकोरेशन किया हुआ है. तो ये शॉट जो है डबल स्प्रेड है. ये मुझे फाइनली मिला, किसी को पता नहीं चला कि हमने क्या किया. जैसे ये है. अभी मैं ये नहीं बोल, लंबी स्टोरी होती जाती है, लेकिन अपने पास टाइम बहुत कम है, फिर भी थोड़ा सा है. ये है संगम.
confluence of Tawa River into Narmada River near Hoshangabad, 8 kilometers away from होशंगाबाद। ये यहाँ पर हर 2 साल में एक रिवर फेस्टिवल होता है, जिसको इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल, जिसमें पूरी दुनिया के जो भी लोग रिवर्स रिसर्च करते हैं वाटर के ऊपर, वो अपने अपने थीसिस के पेपर्स लेके आते हैं और यहाँ पर कैंप रहते हैं, टेंट रहते हैं, पूरा एक कैंपिंग होती है, टेंट में रहते हैं और वो फिर प्रेजेंटेशन होता है और बाद में आगे पेपर्स आर रेड इन सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा। तो वो अगर हमको संगम दिखाना है तो सिर्फ दिखाएंगे तो खाली खाली क्या करेंगे। फिर हमने देखा कि ये कुछ डिवोटीज यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने नहा करके they have taken bath and now they are drying their saris. So drying the saris again, इसमें भी as usual I will take from there and come like this, which is my again routine. I move around the product or subject or object and एक ये मुझे फ्रेम मिली अच्छी बस, and this is what is printed in the book. अभी there are caves, ये बुद्धिस्ट पीरियड के हैं, 7th century की caves हैं, ये भी हमें पता ही नहीं था। अगेन गूगल में देखा नहीं, एक होटल में जहाँ हम ठहरे थे, दी लास्ट घाट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस रिवर गोज इनटू 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैक्सिमम बेनिफिट गोज टू मध्य प्रदेश एंड दिस केव इज इन मध्य प्रदेश। जिस होटल में मैं ठहरा था वहाँ एक लगा था ये गुफा, अरे तो ये गुफा कहाँ पर है, क्या है, उनको पता लगा करके फिर मैंने देखा तो फैंटास्टिक लोकेशन। अगेन इट इज लाइक योर औरंगाबाद की जो है ना अजंता केव्स एंड एलोरा टेम्पल, वो उस पीरियड का है, उसमें इन्हें आपके लगभग वही स्टाइल है, बुद्धिस्ट स्टाइल। एंड कैसे किया होगा 7th सेंचुरी में, देयर इज नो इंजीनियरिंग, नो कंप्यूटर, नो क्रेन्स, अगेन फैंटास्टिक। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ओनली नेचुरल लाइट है। अगेन दिस जो भी नर्मदा वैली में, चाहे वो नेशनल फॉरेस्ट हो, केव्स हो, टेम्पल्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, वो माय टारगेट वाज टू कवर दिस। इसमें मांडू भी आ जाता है विथ, आई थिंक आई हैव नॉट इंक्लूडेड। तो मांडू भी जो है वो भी वहाँ भी नर्मदा है, तो उसकी स्टोरी अलग है। तो दिस इज रॉक केव्स, रॉक पेंटिंग जो है वहाँ पर है, भोपाल के पास में है। इसका मैं वहाँ देखने के लिए गया, ऐसे ये देखा मुझे बहुत अच्छा, ये लाइक लुक्स लाइक ए फ्रॉग। अभी मैं सिर्फ ये लेता हूँ तो कुछ नहीं जमता, तो आई जस्ट वेटेड। एक अनदर टूरिस्ट लेडी केम इन एंड दे शी वांटेड टू सी कि ये हो क्या, क्या फोटो ले रहे हैं, इसके बाद क्या दिखता है। जैसे वो आई मेरा फ्रेम बन गया। सो अगेन फोटोग्राफी में ये भी कहा जाता है द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस। Without patience, you cannot do good photography or you cannot get good pictures. You have to wait and wait and wait. जो साईं बाबा कहते हैं, साईं बाबा यही कहते हैं, उन्होंने एक ही संत ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा सिवाय दो शब्दों के, श्रद्धा और शबरी, मीन्स फेथ एंड पेशेंस। फेथ एंड पेशेंस जो उन्होंने कहा वो फोटोग्राफर्स के लिए ही कहा है। इफ यू हैव दिस क्वालिटी इन यू, you will definitely become a successful photographer and your images will be good. ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फिलोसफी को हमने ऐड कर दिया। Again in Google, when I was searching about Narmada, there is an old saying कि भाई जब गंगा में बहुत पाप धुल जाते हैं, गंगा मैली हो जाती है, जैसे राज कपूर की फिल्म गंगा मैली गंगा हो जाती है, तो गंगा जो है she incarnates herself into a black cow and goes to Narmada to purify herself. ये गूगल पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तभी मुझे ये शॉट, ये लिखा हुआ तो है, लेकिन हाउ डू आई विजुलाइज एंड हाउ डू आई एक्सिक्यूट दिस, मुझे पिक्चर चाहिए। तो फिर मैं ट्रेन में अक्सर जो जाता था, यानी बॉम्बे से भरूच ऐसे या और आगे जाता था गुजरात में, तो मैं ट्रेन में से अक्सर देखा था कि मुझे सेलिंग बोट भी चाहिए। सेलिंग बोट जो है ये और आपको कहीं नहीं मिलती है, तो वो सेलिंग बोट भी चाहिए और ब्लैक काउ भी चाहिए। और एज यू अगेन हैव पेशेंस एंड, तो सोचोगे तो मिल जाएगा, देखोगे तो दिख जाएगा, दिखने लगेगा और दिख जाएगा। तो मुझे दिख गया जब नीचे उतरा यहाँ से,
तो मुझे ये ब्लैक काउ दिखी, दोस्तों ब्लैक रियली ब्लैक भी है और एक्सपोजर में भी ये सिल्हूट है तो ब्लैक लगती है. इफ समबडी सेज क्वेश्चन मी कि भाई you are saying it's black cow, it is not, because of silhouette it looks black, you have given the exposure to for the bright area, so no, it is really also a black cow. तो ये एलिमेंट्स का एक साथ मिलना अगेन इट्स ए ब्लेसिंग फॉर मी. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा शॉट. अगेन ये देखेंगे, ये जो पैर दिख रहे हैं, आई कैन यूज द पॉइंटर हियर, ये जो ये दीज आर देन ओल्ड लेडी जस्ट डाइड देयर, एंड उसका जो है ये लोग वो कर रहे हैं, क्रीमेशन कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं. तो बर्निंग घाट भी बना दिया है, जैसे कि बनारस में है बड़ा, और हर जगह होता है. हर नर्मदा नदी के किनारे ये डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है, हिंदूज में खासकर. उधर मस्जिदें भी हैं और कब्र भी हैं, सब कुछ है. सो इस नर्मदा के किनारे सब कुछ है, ऑल रिलीजन्स आर देयर. ये इट वाज द रिवर फॉर ऑल. तो ये जो जलता हुआ शॉट, सी दीज आर अगेन द स्टीम, so that your image is getting, and these people are just not worried. Luckily उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, फैमिली मेंबर्स की तरफ से कि अब क्यों कर रहे हो फोटो. दे जस्ट लगा के, आग लगा के चले गए, वो स्नान करने लगे ना, मैंने इतनी देर में क्लिक कर ली. तो पोजिशनिंग ऑफ दिस एंड दिस फ्रेम इज अगेन, यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है by some people कि भाई ये this is a pollution, you will be polluting the river by putting the ashes into this. Again, it does not pollute. Okay, it does not pollute. ये biodegradable. Again, as I mentioned कि मुझे हर जगह फेयर एंड फेस्टिवल्स करना थे. कहीं मैं बॉम्बे का गणपति छोड़ के, मुंबई का गणपति छोड़ के, मुंबई तो नर्मदा है ही नहीं है, एनीवे जबलपुर में भी गणपति होते हैं, वो छोड़ दिया और कहीं भी छोड़ दिया. और मुझे ये था कि ये दिस इज अ गोल्डन ब्रिज, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, इनकी गारंटी हो गई 100 years, मोर देन 100 years नाउ, एंड दे हैव लेफ्ट दिस, गिवन बैक टू द गवर्नमेंट. ये आपका ब्रिज ले लो, हमने 100 साल संभाल लिया, आप लोग कुछ नहीं कर सकते. ये है, एंड दिस साइड ऑफ दिस इज द नॉर्थ बैंक, दैट इज साउथ बैंक. तो वो उसमें आपकी वो है, क्या बोलते हैं, अंकलेश्वर है. अंकलेश्वर में ये है और उस तरफ भरूच है. नॉर्मली इट इज हैपनिंग लाइक दिस ऑल ओवर द रिवर. द अदर साइड ऑफ द बैंक is a different town or a village or a city, and this side is a different. So this side is an Ankleshwar, that is Bharuch. I am able to shoot both. First I shoot Ankleshwar like this, and then I go to Bharuch, again shoot this Ganpati. It's the same day. Immediately वहीं से क्विकली हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने ये शूट कर लिया, यहाँ से सब पीपल काफ़ी शूट कर लिया, फिर हम निकल गए वहाँ के लिए. तो ये जो है बहुत यूनिक था. क्रेन लाई गई, बिकॉज देयर इज अ बिग स्लोप हियर फ्रॉम द हाइट रोड टू दिस स्लोप. तो डिफिकल्ट फॉर ए बिग गणेश टू ब्रिंग इन मैनुअली. So they use crane to lift it and again bring back to this and lower it here, which will be taken by the people, devotees, to the boat here, and then the Ganpati will be immersed in deep water. That's थोड़ा और जहाँ पानी गहरा है वहाँ जाएंगे. तो ये हमको अभी how again this is a panorama. How do I shoot a panorama? Again with panorama ऐसे shoot करते हैं. इसमें हमने ये ले लिया फटाफट. I wanted to cover this. There is no wide angle fisheye ना, ये ऐसे करके. So this is the beauty of this picture. This also was selected in some competition. So anyway, more than that, I was very happy to get this placing. ये जो सब कुछ एलिमेंट जहाँ जहाँ है ये पूरा, ये है आपका भरूच साइड. From that bank I come to this bank, and here again there is a committee here, environment committee, which has taken care कि no flowers like Jabalpur are immersed here. No, there is no pollution here. अक्सर ये जो पूरी मूर्तियां आती हैं, the statues, deities are brought, they are with garlands, flower garlands, and all this is put as it is. No, ये before bringing it down, they remove all the flowers, all decoration, and collect it here as a garbage जो भी है, for another processing to make it manure. ये they are lowered. तो ये shot लेना था मुझे. देख लीजिए आप, again panorama.
कितना क्लीन है रिवर. और दिस इज द ओनली कमिटी हियर ऑल ओवर द बैंक which is taking care of this. भरूच के बहुत ही अच्छा है. Again, this is, as I told you, before taking the permission or before completing the height of the dam, the gate's height, there was a Supreme Court case and then वो चला गया, case में चला गया. But every monsoon, this is overflowing like this. The water which should be collected and stopped here is released or not. They cannot stop it because there is no gate here. तो वो मिलता है. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माय स्टूडेंट ऑफ माइन एट ये अपना इस गांव के वहाँ पर डैम के पास में, ही इन्फॉर्म, सर अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी पानी भर रहा है, एक कॉल्स में आप जल्दी से आ जाइए. अभी मैं बॉम्बे से फास्टेस्ट अर्लीस्ट मॉर्निंग ट्रेन पकड़ के भी वहाँ जाऊँगा तो आई विल रीच देयर बाय नॉट बिफोर 1 o'clock. बाय देन द फोर्स हैज कम डाउन, बट एनीवे I still managed to get. तो ये जो है इसमें, and he had arranged permission for me to go into this basket, which is lowered by the crane, and they are shooting a video. There is a video team from Delhi which has come here, and they I was left out. I said नहीं, कुछ बहाना बना के हमको निकाल दो हरी को और वो हमको डाल दो इसमें. तो वो पूरी टीम उसमें चली गई, मेरा शॉट रह गया. लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो भी है, I shot it from with the telly, and ये देखिए मुझे just for the sake of scale, ये भी शॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है. Now this is again our परिक्रमा continues, and जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ से the devotees come up to the river, अंकलेश्वर आते हैं, फिर वहाँ से एक बोट में क्रॉस करते हैं. कहाँ से? They cannot cross like this. They have to come to the confluence of the river and the sea. जो संगम है, नर्मदा का समुद्र से जब संगम होता है, उसके बाहर से जाना है आपको, विदाउट ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल. मैंने उसको वहां से जाना है. लेकिन यहाँ नाउ दिस इज अ स्मॉल बोट, 70 people in this boat. I am the last person to come. I get no place to sit. Anyway, I am not interested. I wanted to move around and take. Move around भी मुश्किल है. I can only stand up. And बाद में जो है, देयर इज नो नेविगेशनल, कोई कंपास नहीं, कुछ नहीं. ओनली 2 boys आर टेकिंग अस. जैसे हम लोग और वहां से चलती है ये बोट हमारी, फर्स्ट वी हैव टू वेट फॉर द बोट, आई मीन हाई टाइड, एंड देन ओनली वी कैन टेक द बोट इनसाइड. अदरवाइज इट इज पार्क्ड देयर ऑन द शोर. तो वो जब पानी भरेगा, नीचे आएगी, डूबेगी, फिर तैरेगी, फिर वहां से हमारा लोडिंग होगी, फिर करके. And for 3 hours, this ride is for 3 hours. आपको भूख लगे, प्यास लगे, और भी कुछ लगे, no chance. You faint, you die, whatever. There's no medical thing. जो भी है. So this is how I wanted to experience. ये इनके बारे में हमने पढ़ा था बुक्स में और सबने. तो मैं I wanted to experience again as a challenge. मैं भी करूँगा, देखते क्या होता है. I boarded this. And these boys brought us there. First we were confused, हम लोग पाकिस्तान तो नहीं चले जाएंगे, क्या होगा क्या. Anyway, this is the Sangam where you bring your the water which you had, put it for, take the new water. Yes, the Sangam का पानी लेके जाएंगे for keep it at your holy place or temple, whatever. Let me thank you once again for this beautiful presentation today, and we sort of enjoyed, beautiful work of yours, spanning for more than 50 years. So because हम लोग ऑलरेडी 2 घंटे अब टच करने वाले हैं, तो हम क्विकली 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद शो क्लोज करेंगे. सो पहला कमेंट आया है मिस्टर धर्मेंद्र के कनानी. वो बोलते हैं, नमस्ते हरि भाई सर, माय लाइट एंड माय चार्जर. सो विशेस फ्रॉम मिस्टर धर्मेंद्र के कनानी. उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मिस्टर नागेश्वर राव का. नागेश्वर राव जी बोलते हैं, सर, is there any thumb rule for the best angle to shoot the subject? Yes, the best rule is not thumb rule, the best hand rule, whatever you say, is you have to, whatever you are shooting, your object, subject is to be explored. That is what I do. First, like wildlife photographers, they study, they know the behavior of the animals. That is their homework.
if you are shooting, can you mention again, specify what you want to shoot, because your question is still incomplete. Best rule is what? Again, if it is a building, it's a very big building, it's hospital. It's a hospital. I show again for whom it is. If it is for that this hospital is so big, if we have such facilities, and so you again, your study is required of the subject. Client although will give you the brief, or they give you all the features. This is the speciality of this hospital. So you start with that, and when you are on location, specific, when you are selecting an angle, the best thing is show everything possible, which is not possible. So whatever possible, as I mentioned earlier with examples, कि भाई यहाँ से वहाँ तक, that is problem I also face when I go to industry. I'm in the industrial R&D center. My client says, or the doctor or the lab in charge tells me, see, we put raw material here and it comes out of the machine there. So let's please try to show. I said, just a minute, stop. Excuse, फिर से बोलो, यहाँ से वहाँ तक. When you said this, did you move your head? Yes, you did. That means you are talking movie. You are talking of video. When camera is moved, when you are telling me, समझ में आ रहा है आपको Rizwan? Yeah. From here, at that time, our eyes don't see that. Our eyes see only this portion. Then I move head this. So that means our problem of our eyes, जब आँख से देखते हैं, तो there is a limitation. Our angle of coverage is limited. But this is solved by the camera lenses. The type of lenses technology has given us can show you much more, almost 360 degrees. You can cover and show. So again, if you find limitation with your lenses which you have, you can do this technique that you can move. But again, angle you have to decide. If you are showing raw material entry from this side, so that should be your main. As you say, the story of the subject, and the interest of the subject is what? Loading the product, some raw material from this end. So that is more. Sofa कम bed. Sofa ज़्यादा है, bed कम है, या bed कम sofa है, क्या है? That you have to decide and then explore. पहले आप सिर्फ कैमरा लेके देखिए, आप फिर एक लेंस लगाइए, वो लगाइए, फिर लगाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, अगेन राज कपूर को याद करिए, दाएं भी नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, सब कुछ करके फाइनली यू विल अराइव एट द प्रॉपर थिंग you are looking for. I hope I have answered the question. Sure. I'm sure, Srinivas, your question is well answered. So now we have next question from Sujata. She says, वो आपके जो geometrical जो photography थी, patterns, pins मिला के और coins मिला के जो आपने बहुत सारे patterns दिखाए, वो photography जो उसके मुतालिक pin art folder. तो उसमें पूछती है, सुजाता बोलती हैं कि you must be from architecture background with geometrical pattern vision. Hats off to you, sir. So further वो पूछती है इसमें, is it your creation? If so, is it patented or IPR? So who is your inspiration to take this unique pattern photography? This is my own idea. Again, I will quote here Osho, Rajneesh, for you to remember, you can be creative only when you are playful. समझ में आया? You can be creative only when you are playful. So I am playful. अभी एक हाथ में आपके कुछ भी चीज है. If I am holding a brush, I am trying to see this brush from different angles. फिर अभी, then I'll be inspired to do something mundane. बोले इसमें क्या करना है? ब्रश को छोड़ो यार, ब्रश को रखो सीधा और शूट कर लो. That is again a product photography. Straight away, no. There is passion. Passion should be included in this. Does it inspire you to do anything more than what you see? तो वो एक है, and this is totally my own. कहाँ से? Again, I should tell you that wherever I went into the industry and I'm looking at the demonstration of a machine, तो जो waste निकलता है, I don't know, in my house I used to collect lot of waste material which I have collected from the various industries.
बरसों से, यानी 60s से भी हमारे पास वो आज भी है. अगेन सॉरी टू टेक यू बैक टू, मेरे पास में जो एंटीक है, when I was doing MA in ancient Indian history after my graduation, photography was not there, but I had the camera as in again after, so I used to collect the things and shoot this. तो वो कलेक्शन आज भी है. किस लिए है कि कभी इसको मैं शूट करूंगा. You know, my approach is someday I will use, I don't know when and what I will do. So I have collected some ball bearings and springs, such industrial, मेरा industrial waste तो वही होगा ना. So that when I'm free, I'm thinking about it, looking at them, अरे इसको कुछ करना चाहिए, ऐसे करके वो आइडिया आया, इंस्पिरेशन मिला. और वो हमने फिर उसके ऊपर और आगे रिसर्च की. When I got one very good shot, interesting, then I said इसको तो मुझे पूरा और बनाना है, इसकी बुक बन सकती है. And I made a final book, personal book, not published, which was shown to an American publisher in Paris when I had gone for portfolio review. ये सब चीजें बातें हम आपको बताई नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है. And that American publisher said, it doesn't look like it is from India. I've never seen such thing. It's fantastic. यानी वो उसका रिमार्क था. Again on this pin art book. Okay. So I hope I've answered. Yes. So yeah, that was really interesting. Pin art was really interesting. Now Neeraj says, Ramesh is asked some question about panorama. Yeah, I'm reading that question. He said, please elaborate on panorama. Is there a panorama lens or camera movement? Yes, very simple. As we move our head, I just now explained you before this question, before this, that when you want to see something on your left hand side, you don't see the right hand side or the middle side, correct? So you move your head. Okay, it is like this. So you have to move your camera, take the entire scene into parts, and each part should overlap 50% of the other part. Okay, and then there is of course Photoshop there. Photoshop में software है which will just put these images back into that and it will stitch for you. So photo stitching, but you have to be very careful in taking the parts. So for this you have to you require a graduated head, 360 degrees divided into each degree, 360 divided. So you move your camera, you lock your camera first into this position, then move click like this. But each time the overlap should be 50% of the other image what we have left, because that is the requirement of the software, so that it will stitch smoothly. But still there is a big catch which lots of people don't remember. I don't say that they don't know, they don't remember. I can say you are moving on the same axis. Suppose you are using a zoom lens. The center of the optical lens, should be moving, not this lens. If the camera is like this, no. So I have to bring this in the center. This will move. So the axis should move on your camera should move on one axis, which is the center, which you have to find out. So you require a VR attachment, virtual reality attachment, or your L plate, where you can move the camera, bring it to center, tripod ka center and lens ka center. They should be aligned. Then you are ready for moving your camera and you stitch later on. Hope it is clear. If confusion is there, again. I'm sure Mr. Tekewani's question is well answered. So now we will have to close this show for today because already we have passed 2 hours now. There are so many comments, from the viewers, but yeah, those can be viewed on Facebook page. I should thank you, Mr. Hari Manidhar, for kindly joining us today. Taking your time from your busy schedule. It has been so enriching session today. Watching your work right from your beginning days to now it's sort of modern digital work. It's been so enriching for all of us today. Thank you so much for today. I thank you. You are welcome. Always any answers to these questions,
you tell me, guide me how to answer these questions. Either they mail it to me or my Facebook account. Sure. I mean, Sure. Through Facebook, I think those answers can be answered because the questions, comments will remain on Facebook, and we can keep on interacting with the viewers through Facebook page. So this will be sort of long interaction from now onward. So I thank you once again for kindly joining us today. So dear viewers, that's it for today's show. Next Saturday at 11:30 a.m., we will be back with yet another media personality. So keep watching IMC Manu Facebook channel. We will be back with yet another personality on coming Saturday at 11:30 a.m. Please take good care of you. Stay home, stay safe. Thank you so much. Goodbye.